ठीक है. Okay, for the sake of this orientation program, I welcome to you, heartily welcome to you all peoples. So I believe that the Karnataka government has announced the KTET notification for the sake of the peoples, those who are belong to the BA, BEd or BSc, BA, for the sake of teachers eligibility test. So this act, according to the 2009, the other act of the RTE, the Right to Education Act, the government has presented their proposal for the sake of the teachers eligibility test with the initiative, with the intention to be bring a quality education in the Indian atmosphere, the Indian education atmosphere. So for the sake of that, the many state has adopted the concept of the KTT, Karnataka TT, Karnataka TT, especially TET. So TET means teachers eligibility test जो है like that. So Karnataka is also one of the state those who have adopted this policy from the 2014. So by conducting the several 5 to 6 examination, recently the Karnataka government has notified for the sake of KTET 2022. So the examination shall be on the November 6. November 6. The last date for the application is September 30. So in these circumstances, this seminar or orientation classes is going to be held for the sake of the availing the aspirant regarding the KTET examination. So major initiative or the major concept is to be promote the candidates of the Hyderabad Karnataka region. So while we turn to the syllabus, you can find the different things. ये syllabus वही है, changes नहीं आए हैं. So in this syllabus we have different things, paper 1 and paper 2. Before that, many of the aspirants are asking about how to crack the TET examination. Already one of my video is available on the YouTube channel Gulbarga Coaching Academy. So there I have explained in detail regarding the all kinds of the tools and techniques that can be helpful for the sake of the cracking the examination. Okay. So today inshallah once more I shall explain about these things related to the examination pattern, the examination techniques and examination tools, how to collect the different kinds of the syllabus materials and all kinds of the things that are required for the sake of a examination. If you go to the examination pattern or examination, so there would be two papers. One is paper 1, P1 and P2. In the paper 1 and paper 2. Paper 1 as you know already those are completed the D8 and the B8. So both B8 D8 candidate and B8 candidates also eligible for the sake of both paper. Okay, if you completed your B8, BSc B8 or BA B8, you can apply for the both paper. If you are only a B8 plus BA or only D8, you can eligible for the sake of only one, that is paper 1. Paper 1 means the 1 to 5th teacher and paper 2 means a 6 to 8th teacher. So these are the hierarchy for the sake of a examination. So एक hierarchy examination की जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं. Many of the aspirants are in the confusions related to the optional languages, which language we have to be choose for the sake of examination. So any examination, the both, suppose you are going to be apply for the sake of a paper 1, you have the right to be choose your language, but that should be in your academy. Many of the aspirant by the observing to the SSLC marks card, they are thinking that the first language Urdu, second language is Kannada. Okay, the many of the queries are coming from the different side. The first peoples are opting the first language as a English or Urdu, and second is Kannada. So no need to be choose any other language or Kannada as your language. You have right, you have a command over the Kannada, you can choose it. If you not have any kind of a command on the Kannada, there is no need to be far in the क्या कहेंगे आपकी कुएं में कूदने से बेहतर कि आप दूर खड़े कर देख रहे हैं. So here the Kannada or the Urdu or English, it's depend on you people. It's depend on you people कि आपके जो लैंग्वेज आपने चूज किया था, आप जो एकेडमिक में फॉर एग्जांपल 1st to 10th उर्दू पढ़े हैं, नो प्रॉब्लम.
पीयूसी में इंग्लिश पढ़े हैं तो रख सकते हैं, पीयूसी में अगर आपका हिंदी है तो रख सकते हैं, अभी ग्रेजुएशन में आपने जो है ऑप्शनल रखा है हिंदी उर्दू कन्नड़ा तो वो भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो एक 10th स्टैंडर्ड में जो सेकेंड लैंग्वेज है वही सेकेंड लैंग्वेज आप रखें, बहुत सारे एस्पिरेंट ने गलती की है। सो ये सिलेबस पैटर्न ये जो है ये थोड़ी लिटिल बिट जो है इंफॉर्मेशन थी। इससे हटकर जो इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो है हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, उसके बाद मैं आपको जाऊँगा। सो बेसिकली द एग्जामिनेशन, द मेन मोटिव ऑफ द एग्जामिनेशन इज टू बी चेक आउट द एबिलिटी ऑफ ए टीचर्स, अहलियत की सलाहियतें क्या है वो चेक करना है। आप देखिए आज का जो है मॉडर्नाइजेशन एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया, जो क्वालिटी स्कूल्स हैं वहाँ पर जो है ऑलरेडी टीचर्स को जो है डेमो लिया जाता है, डेमो के साथ साथ जो है नॉलेज चेक किया जाता है। मुझे भी मालूम है कि गुलबर्गा के एक ऐसा इंस्टीट्यूट था, मैंने जब बीएड कंप्लीट किया था तो मैंने जो है अप्लाई किया था एक स्कूल को, हागरगढ़ क्रॉस के पास है, तो इस स्कूल में मैं फर्स्ट टाइम पे जब मेरा डेमो देने गया था, आप यकीन मानिए मत मानिए, काश कि मैं जो है वो वैसे क्वेश्चंस अगर मुझे जो है किसी एग्जामिनेशन में पूछे जाते तो मैं तभी पास करता। तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस उस जनाब ने पूछे, उस टाइम पे फर्स्ट डेमो था मेरा, वो भी मैं फेल हो गया था। बाय द लक सेकेंड टाइम पे जो मुझे कैम्ब्रिज का ऑफर आया, दूसरे स्कूल्स का आया, तो वहाँ पर मैंने अब जो है वो एग्ज़ाम वहाँ पे वो डेमो मैंने क्रैक की, बिकॉज अंदर से जो है मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए। एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले ये आनी चाहिए, आई कैन आना चाहिए, यानी मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, तभी आप करेंगे, तभी आप कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि जी मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, यानी तो एग्जामिनेशन कैसा रहता है कि कितना टफ है कि क्या है कि इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक दिस, सो बोर्ड तक खबर को जाने तक जो है एग्जामिनेशन नहीं पास करते, याद रखिए। सिंपल ट्रिक इज टू बी पास द एग्जामिनेशन इज वन मोर थिंकिंग, साइमल्टेनियसली दो पेपर के लिए अप्लाई करते हैं, हमारे नुकसाना फरदाना परेशान होते हैं कि दोनों पेपर्स लेकर बैठते हैं पढ़ने के लिए, कोई है नुकसाना फरदाना बुरा मत मानिए, मेरे जो ख्याली जो कैरेक्टर से मैं यूटिलाइज करता हूँ, तो करते हैं दोनों पेपर के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, ना ये आता ना वो नतीजा आता है। आप एक सिंपल ट्रिक बता दूं मैं आपको, एग्जामिनेशन पास करने के लिए आप पेपर 2 के लिए अप्लाई कीजिए। पेपर 2 के लिए वही करें। आप क्यों ऐसा सवाल पूछते हैं कि पेपर 2 के लिए क्यों अप्लाई करें, पेपर 1 से क्या नफरत है, इसी क्या है? तो सिंपल नफरत नहीं है, इसके पीछे एक राज है, जो टेक्निक्स हमने फॉलो की। तो देखिए सिंपली मैं बताऊंगा आपको, जो आने वाले पेपर हैं, अब जो भी जितने भी एग्जामिनेशन पोस्ट आएंगे, पोस्ट जितने भी आएंगे चलता है, मगर दोनों में जो क्या होता मालूम है आपके, दो कश्ती में सवार होने के चक्कर में जो आप गिर जाएंगे इंशाल्लाह नहीं। अगर आपके पास यह है स्प्रिट, यह है डे टू बी डू दैट, सो आप कीजिए, बड़े शौक से कीजिए। मैं पेपर 2 इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, द नंबर्स ऑफ द वैकेंसीज आर वैकेंट, नंबर्स ऑफ द वैकेंसीज आर वैकेंट इन द रिसेंटली जो हुआ उसके अंदर भी जो है अराउंड जो है मेरे जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रहे, अराउंड जो है एक 45 के करीब जो है स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स ने मेरे जो है टीईटी क्रैक किया। उसके बाद जीपीएससीआर में अपियर हुए, उसके बाद जो है अराउंड 15 से 20 जो है एस्पिरेंट ने ही जो है जीपीएससीआर पास किया। उसके पीछे रीजंस भी बहुत सारे हैं। देखिए उसके अंदर जीपीएससीआर में कहा था कि जो है पदगडली बदलागी वाक्य बदलागी पदगडली उत्तरी सभ्य बोलते हैं, मीन्स आपको जो है सेंटेंसेस से ज़्यादा जो है वर्ड्स में आपको जो है जवाब देना था, तो वहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट ने जो है गलती की, जिसकी वजह से जो है वो उनकी नैया डूब गई है। फिर भी जो 15 लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह आएंगे। I feel proud to announce that one of them, my sister is also going to be crack that examination. अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये भी टीईटी के लिए भी जो है इसी तरह का एक माजरा है, सिंपल चीज़ें हैं, कहाँ से कौन सा सिलेबस लेना है ये कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, आप उठाकर जाकर देखिए, मैं आपको पूरी चीज़ें बताता हूँ कि आप जो है कहाँ से क्वेश्चन आया है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से लेवल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत बारीकी, ये कोई चीज़ नहीं बताते। बहुत सारे लोग आते हैं इधर उधर जो है शहर में जो है, अब तो ऐसे हुआ है कि गुलबर्गा में जो है फर्स्ट टाइम टीईटी कोचिंग क्लासेस शुरू किए थे, जो है बीजापुर के थे मेरे दोस्त, मैं उनको पहचानता हूँ, नज़ीर मुल्ला था नाम उनका। उनके बाद जो है गुलबर्गा में जो है उसके बाद जो कंटिन्यूसली जो है मैंने क्लासेस रखे और कंटिन्यूसली जो है मैं क्लासेस ले रहा हूँ 2016 से, आप सबको मालूम है। तो यहाँ पर देखिए
कोचिंग क्लासेस में जो है वही लोगों मेरे एक जो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि उन्हीं लोगों से जो है आप कोचिंग लीजिए जो ऑलरेडी एग्जामिनेशन क्रैक किए हैं, क्योंकि जो है दो चीज़ें होती हैं, एक जो है क्या मालूम है प्रैक्टिकली जो लोग जो है करते हैं, जो लोगों का एक्सपीरियंस होता है वो लोगों के पास जो है ज़्यादा जो है क्या मालूम है स्पीड भी होती है, नॉलेज भी होती है, टेक्निक्स भी होते हैं कि किस तरह आप एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं है वो लोग भी जो है क्या मालूम है अगर देते हैं तो जो है वो मामला ऐसा है कि नई दुल्हन को जो है घर के अभी हालात मालूम होने क्या है ये भी दिन थोड़ा वक्त लगता है या नहीं लगता? तो अभी नई दुल्हन बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास आए हुए हैं, तो आप बच कर रहिए। तो यहाँ पर जो है बात कर रहा हूँ मैं आपको जो है टेक्निक्स की। तो देखिए सिलेबस जो है क्या मालूम है क्रैक करने के लिए सीटेट पहला आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी फीस नहीं है। आपको सबसे पहली जो टेक्निक्स यूटिलाइज करनी है, आप अगर पेपर 1 के लिए है 1 to 7 आपको पढ़ना है, 1 to 7 आपको पढ़ना है। 1 to 7 आपको जो है पेपर 1 के लिए जो है क्या है P1 के लिए 1 to 7 आपको पढ़ना है। फर्स्ट पेपर के लिए 1 to 7 जो है EVS या जैसे सिक्स हो जाएगा सोशल हो जाएगा, और याद रखें EVS प्लस जो है आपको जो है मैथमेटिक्स जो है मैथ्स का आपको पढ़ना है, 1 to 7 पढ़ना है। आप जाकर जो है क्वेश्चन पेपर फर्स्ट का लीजिए, पेपर 1 लीजिए कोई भी प्रीवियस ईयर का, उठाकर देखिए पूरे बुक्स बाजू रखिए, और मैं तो इतना भी कहूँगा कि पेज नंबर के साथ जो है क्वेश्चन आए, पेज नंबर के साथ जो है क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए, आप जाकर जो है 1 to 5 के देख सकते हैं। अब जो लोग जो है 6 to 10th कौन पढ़ना है बुक्स, 6 to जो है क्या मालूम है 10th लीजिए पेपर सेकेंड के लिए। आप साइंस स्ट्रीम पे हैं या एसएस से हैं नो प्रॉब्लम, आप साइंस से हैं एसएस से हैं नो प्रॉब्लम। आपको जो है बेसिकली यू हैव टू फॉलो द पैटर्न ऑफ द कर्नाटका सिलेबस। ये मैं पेपर 1 1st to 5th टीचर है, मगर मैं आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, 1 to 7 की टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए कह रहा हूँ आपको। मैं जो है क्या मालूम है टीचर्स नहीं बता रहा हूँ, 1 to 7 जी। अब उसके बाद 6 to 10 के जो है क्या मालूम है टेक्स्ट बुक पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है? टेक्स्ट बुक पढ़ना है। आप किसी भी स्ट्रीम से रहें, फॉर एग्जाम्पल आप पूछेंगे कि जो है क्वेश्चंस कहाँ पर ज़्यादा आएंगे, तो एक मेजर आपका जो फोकस होना चाहिए, अगर आप पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो है क्या मालूम है 6 से लेकर 8 तक के जो है जो सिलेबस चैप्टर है अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरा नहीं पढ़ना है। कुछ चैप्टर्स नहीं है जो सिलेबस में नहीं है, हमारे जो है रुखसाना पूरे बुक्स लेकर सुबह से शाम तक छानते बैठे, तो वैसा नहीं करना है। सेलेक्टिव जिसको बोलते हैं सेलेक्टिव। आप कपड़े की दुकान जाते हैं तो पूरी जगह क्या मालूम है कपड़े की दुकान ही आपके ऊपर डाल देता है, आपके ऊपर चूज करना आपका इख्तियार रहता है। तो लाइक दैट सिलेबस के हिसाब से आपको जो है जाना है, सिलेबस को आपको चूज करके पढ़ना है। तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्निक्स फॉर द सेक ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन। तो 6 to 8 तक परफेक्ट होना है, एक्सटेंड अप टू 9-10 पढ़ना है। ये कोर सब्जेक्ट के लिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए? कोर सब्जेक्ट अपना अपना। फॉर एग्जाम्पल आप साइंस से हैं तो साइंस के लिए जो है ये पढ़िए, अगर आप आर्ट्स के लिए हैं तो आर्ट्स के लिए जो है ये टेक्निक्स फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो है लैंग्वेजेस की L1 या L2 जिसको हम कहेंगे फर्स्ट लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज, लैंग्वेज 1 एंड द लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए भी बहुत आसान सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा जो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कोर्स सब्जेक्ट होगा 60 मार्क्स के लिए आएगा। कितने मार्क्स के लिए आएगा? 60 मार्क्स के लिए आएगा। उसके बाद लैंग्वेज 1 जो है 30, लैंग्वेज 2 30। कितने हो गए ये? 60 मार्क्स, 60 + 60 120। देखिए आप 120 में जो है क्या मालूम है आप जो 80 मार्क्स नहीं कर सकते क्या? 80 मार्क्स इसके में नेगेटिव भी नहीं। तो 80 मार्क्स कैसे करना? सिंपल टेक्निक्स में आपको बता रहा हूँ। पहले आपको जो है अप टू 46 क्वेश्चन, 45 40 50 आना चाहिए। ऐसे अगर देखते हैं तो अगर 45 क्वेश्चंस भी आपके कोर सब्जेक्ट से आ रहे हैं, कंटेंट डायरेक्ट कंटेंट बोलते हैं जिसको जो है किसी को पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, आपको किसी की ट्यूशन क्लास की जरूरत नहीं है, किसी कोचिंग क्लास की जरूरत नहीं है। आप सामने रखिए, आपको कंटेंट खुद है, कंटेंट खुद देख के पढ़ना है, खुद याद रखना है। वो आपको जो है 40 मार्क्स का, तो अप टू 40 मार्क्स आता है, 50 मार्क्स आने चाहिए। तो यहाँ पर जो आएगा, जो आर्ट्स के हैं उनको जो है ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ऐसे सर सिविक्स पढ़ना पड़ेगा। तो ये पूरी चीज़ें जो है क्या मालूम है इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो है चीज़ें कहाँ पर है? 6 to 10 के बुक्स में से ही आते हैं। ये ध्यान में रखो आप, एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, 10,000 बार भी यही बोलूँगा मैं।
कि कर्नाटका टीईटी अगर आपको पास करना है तो 6 to 10th के बुक्स पढ़िए कंटेंट के लिए, कंटेंट के लिए 6 to 10th के बुक पढ़िए। उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो जो है पेडागोजी है। देखिए पेडागोजी या पेडागोगी आप जिसको बोलते हैं, ये तरीक़े तदरीस या तरीक़े तालीम कहेंगे, तो उसके लिए कौन सी चीज़ें पढ़नी है, तो आपको पेडागोजी के लिए पढ़ने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर मैं आपको साइकोलॉजी में जब लेकर जाऊंगा या सब्जेक्ट वाइज एक एक एनालिसिस भी अभी करूंगा अभी आपको, तो उस वक्त जो है आपको पेडागोजी के लिए अगर जो है हमारे पास होता यह है कि जो है बहुत सारे बीएड कॉलेजेस चलते हैं, अब तो वो जो है बीएड कॉलेज कुछ बंद भी हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो वैसे जगहों पे बीएड जो होता है हमारा वो तो माशाल्लाह अल्लाह माशाल्लाह आप सब कुछ जानते हैं, बड़ी ईमानदारी से जो है बीएड किए हैं, तो मुझे मालूम है क्योंकि मैंने देखा है रुखसाना का रिकॉर्ड, सबीना का रिकॉर्ड ऐसे ही चलता रहा है, 8-10 साल से जो है वही रिकॉर्ड लिखते हैं। और कुछ कॉलेजेस में मैंने ये भी देखा है कि लेक्चरर्स खुद भी रिकॉर्ड लिखते हैं, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो बुरा ना माने, मैंने आपकी हकीकत देख ली है। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं, लेक्चरर्स खुद भी बीएड लिखते हैं। कई जगहों पर जो है क्या मालूम है फेक कैंडिडेट्स को ला के बिठाया जाता है जब कमेटी आते हैं, ऐसा बीएड करे इस वाले जो है टीईटी पास होने की तवक्को नहीं रखना। अब रखे भी हैं तो अब मेहनत करते हैं, ओके, रखे भी हैं तो अब मेहनत करना है। तो मेहनत कैसी करना है, तो सिंपल और स्मार्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपने कहा कि टेबल उठाकर बाहर फेंकना है, तो आप उठाकर ऐसा ले जाके ये करेंगे, टाइम रहा तो निकाल सकते हैं, नहीं अगर आपको जो है इसको स्मार्ट तरीके से ले जाना है तो 2-3 लोग पकड़ेंगे और ज़्यादा स्मार्ट हो गए, या नहीं तो कुछ मशीन से उठा कर रख देंगे और ज़्यादा ही होगा। लेकिन बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज दैट आपको भी कोई भी काम करना है, यू हैव टू बी चूज ए बेटर वे फॉर द सेक ऑफ बेटर थिंग। अच्छी चीज़ को हासिल करने के लिए अच्छा रास्ता ही चुनना पड़ता है, बुरी चीज़ के रास्ते पर अगर चलते हैं तो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपको जो है सिलेबस जो है 6 to, अगर पेपर 2 पढ़ रहे हैं तो 6 to 10 तक का सिलेबस आप क्या करना है, पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू विच इज इट इज रिलेटेड टू द थिंग दैट इज द सिलेबस। पुराना है मगर सेम सिलेबस है, तो ये सिलेबस कॉपी जो आपकी ये सिलेबस जो होनी चाहिए। सिलेबस इज लाइक ए प्रियम्बल, आपको इंट्रोडक्शन दिलाएगा, आपको जो वो चीज़ें बताएगा जो आपको जाननी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास क्या होता है घरेलू ज़िंदगी है, मुश्किलात हैं, हालात हैं, उन्होंने सुनते नहीं, उन्होंने सास बोले तो सुनते नहीं, लोग सुनते नहीं, ऐसे चक्करों में भी हैं हमारे बहनें या बहुत सारे हैं, भाई भी हमारे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मुझे पढ़ने से नहीं देते हमारे बीवी। तो ऐसा ये नहीं कि एक मोहतरमा एक जनाब का कॉल भी आया था मुझे, क्या तुझे बाजू का रास्ता है क्या दिखाओ बोलकर बोले, तो बाजू का रास्ता आप समझ गए होंगे, वैसे बाजू के रास्ते पे मत जाओ आप। तो बोलने का ये है कि जो है आपको अगर टाइम ना अभी से 2 घंटे मिनिमम पढ़िए, मैं 2 घंटे इसलिए बोल रहा हूँ, आप 90 के करीब आना, आप डेफिनेटली फुल कॉन्फिडेंटली पास होना है तो 4 घंटे आप पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है। 4 घंटे पढ़ना है बोलते ऐसा नहीं है कि लेकर बैठे पूरा खत्म 4 घंटे तक, क्या टाइम हो रहा लगाए अब जो है 2 बज रहे हैं, 6 बजे छूटता हूँ मैं, उनका नहीं, उसके भी टेक्निक्स हैं पढ़ने के लिए भी जो है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स हमारा जो माइंड है वो जो है क्या मालूम है फुल कॉन्सेंट्रेटली एक्टिवली किसी चीज़ की तरफ रहता है। 45 मिनट्स, कितने मिनट्स, 40 to 45 मिनट्स ही हमारा माइंड काम करता है किसी एक टास्क पर, उससे ज़्यादा नहीं करता। उसके बाद जो बोरियत, उकताहट, जो है टाइटनेस इस तरह होती है। तो एक सिंपल टेक्निक मैं आपको बताऊंगा उसके लिए भी। 40 मिनट्स पढ़ना है, 10 मिनट्स जो है उधर इधर घर में घूमना है, कुछ भी काम रहा तो कीजिए, अगर आप जो है शादीशुदा हैं कुछ काम करना है घर की कीजिए, नहीं आप जो है बैचलर हैं तो जो है क्या मालूम है बच्चे रहते हैं उनके साथ मजाक करिए, ऐसा कुछ तो भी ऐसी एक्टिविटी कीजिए। नहीं मुझे अब टाइम मिला मैं पूरा फ़ोन देखता हूँ, तो ऐसे मत कीजिए, जिससे और आपका जो जितना 45 मिनट्स नेक्स्ट पढ़ना है आपको, फिर वो आपके ऊपर जो है क्या मालूम है बर्डन होगा। तो ये टेक्निक यूटिलाइज कीजिए कंटिन्यूसली, वो चीज़ें जो है लाइफ टाइम याद रहती है, देर पा रहती है। ये टेक्निक्स आप जो है फॉलो कीजिए टीटी पास करने के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 बकने से बेहतर है एक लिखना, आपने कभी सुना होगा, तो सिंपली यू हैव टू बी फॉलो द सेल्फ नोट्स विथ नोट्स। सेल्फ नोट्स आपकी प्रिपेयर कीजिए, वो कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल एक आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं फूड, एक चैप्टर आपका है फूड, उर्दू में कहेंगे ग़िज़ा, तो ग़िज़ा या फूड पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट तो सब में पहले देखना है कि ग़िज़ा का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ ग़िज़ा और फूड क्या है, उसकी तारीफ क्या है वो लिखना है। उसके बाद जो है आपको आना है नेक्स्ट कि जो है वह फूड इज़ नेसेसरी, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह की जो है क्या मालूम है क्यों ज़रूरी है, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फूड, फॉर्म्स ऑफ फूड है। उसके बाद जो कंपोनेंट क्या क्या है,
ये अलग अलग पे आने के बाद जो है क्या मालूम है, आपको चीज़ों को पूरे जो है नोट डाउन कीजिए अप टू जो है 6 से लेके अप टू 10 तक, अगर आप पेपर 2 के लिए अप्लाई, तो वो करने के बाद आपको जो है फूड रिलेटेड जितने भी जो है 6 to 10 तक इंफॉर्मेशन है, एक टाइम एक चैप्टर पकड़े आप, एक चैप्टर आपने जो है लिया है तो चैप्टर को पूरा 10 तक जाकर देखना है। अगर वही कॉमन चीज़ें उसके अंदर है तो छोड़ते स्किप करते जाना है। फूड का डेफिनेशन एक बार आपने लिखा तो नेक्स्ट जो है फूड का डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको फर्दर फूड के रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन है आपको उसके अंदर नोट डाउन करना है। तो इस तरह करने से आपका एक कंप्लीट चैप्टर होगा, ये कंप्लीट होगा। जो बड़े बड़े जो अरियंट हैं, पब्लिशर्स हैं, सनी स्टार है, ये मार्गदर्शन, अलग अलग जो पब्लिशर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यही काम करते हैं। आप जो नोट्स जो उनके रेडीमेड वो पढ़ते हैं, ये देखिए वो रेडीमेड नोट्स पढ़ने से भी सेल्फ नोट्स का बेनिफिट ये है कि आपको जो है खुद लिखी हुई चीज़ जो है आपके पास ज़्यादा दिनों तक याद रहेगी। खुद की जो है चीज़ ज़्यादा दिनों तक याद रहती है, आप याद रख के जो चीज़ों को याद कर सकते हैं, ये चीज़ आप याद रखें, ठीक है। ये चीज़ अगर आप करते हैं तो सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कीजिए जिससे आप योग्य हैं। अब और एक टेक्निक है, एग्जामिनेशन से पहले इवैल्यूएट करते रहे अपने आप को, बार बार चेक करते रहें। क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, बहुत सारे जो फाउंडेशंस हैं बहुत सारे लोगों ने निकाला है। गुलबर्गा में जो एक्टिवली जो काम करी है हेल्पिंग हैंड फाउंडेशंस के नाम से, बहुत सारे लोग जो ग्रुप में हैं, नहीं है तो भी ऐड हो जाए, वो ग्रुप में जो है वही क्वेश्चन पेपर आते हैं। नवी जुबैर सर जो हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के एक्टिव जो है क्या मालूम है कहेंगे ऑर्गेनाइजर है, प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पर जो है डाल रखी हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारा टीईटी का मटेरियल भी जो है गूगल ड्राइव में उन्होंने पूरा जो है डाला है। अगर किसी को चाहिए तो लिंक जो है दे देंगे, वो मटेरियल वहाँ पर भी मिल जाता है। लेकर अपने सेल्फ नोट बनाने से होता है कि लिखते 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 आपको चीज़ें याद हो जाती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ये चीज़ आप फॉलो करनी है। उसके बाद रही बात साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी देखिए अगर आप पढ़ लेते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट की पेडागॉजी आपको आसान हो जाएगी। आसानी से जो है आप दूसरे सब्जेक्ट का जो भी जो है क्वेश्चन आएंगे वो आसानी से क्रैक करेंगे, ये मैं कहूँगा। बिकॉज आपका माइंड जो है उसको सोचने के एक नए दूसरे मैार पर ले जाएंगे, आपको जो है दूसरे तरीक़ेकार पर ले जाएंगे। मिसाल के तौर पर जो है कोई चीज़ आपको जो है नहीं समझ में आ रही है तो साइकोलॉजी जो है आपको समझा देगी, क्योंकि बिकॉज इट्स अ रिलेटेड टू अवर द कॉम्प्रहेंशन, हमारी जो है जहनी सलाहियत के कॉग्निशन से रिलेट करती हुई चीज़ें हैं। ये टेक्निक्स फॉलो कीजिए और जो है बार बार मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाइए। मैंने एक बार नहीं बार बार कहा है, उर्दू मीडियम के साथ जो है ये नाइंसाफ़ी हुई है कि जो है जो ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेशन थोड़ा जो है क्या मालूम है मशीनी ट्रांसलेशन या कहेंगे गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेशन करते हैं। मैंने जब ट्रांसलेशन देखा, मैनुअल ट्रांसलेशन होता है तो बहुत आसान होता है। फेल होने की वजह उर्दू मीडियम के बच्चे ये भी है कि जो ट्रांसलेशन है वो गूगल ट्रांसलेशन से होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँगा, देखिए आप, ये है कॉग्निशन। कॉग्निशन को क्या बोलेंगे आप उर्दू में, क्या बोलेंगे? कॉग्निशन, कॉग्निशन क्या बोलेंगे आप? अगर आप सही जो है कि मान लो लिटरली मीन उसके देखेंगे तो इसको इदराक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अदरक नहीं, इदराक। हाँ जी, अदरक सुनेंगे, फिर अदरक आज के कोई है। तो इदराक के माने फहम या समझ के हैं। क्या है? फहम या समझ के हैं, तो इदराक कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? समझना, फहम। लेकिन जनाब ने जो ट्रांसलेशन में जो किया था वो जो था ये था वकूफ़ी। आप जाकर देखिए पर्चे में आपके वकूफ़ी है, कॉग्निशन को उसने वकूफ़ी लिखा है। वकूफ़ी इज आल्सो करेक्ट टर्म, बट हमारे पास जो बुक्स वगैरह में जो अब आज तक हम पढ़ते आए हैं वो इदराक पढ़े हैं, ये फहम पढ़े हैं, समझना है, अकल पढ़े हैं। तो ये चीज़ें जो है हमारी समझ है, ये चीज़ें हम पढ़े हैं। जैसे सडन वकूफ़ आता है तो हम जो है क्या मालूम है थोड़ा सा चकरा जाते हैं। हालांकि हम ये वर्ड भी पढ़े हैं, देखो आप कब पढ़े हैं ये वर्ड मैं आपको बताऊंगा कब पढ़ेंगे, आप खुद याद कर लेंगे। पढ़े या नहीं पढ़े? वकूफ़ी पढ़े हैं, लेकिन वकूफ़ी बोलते ही जो हमारे बेवकूफ़ी पढ़े हैं, वकूफ़ी नहीं पढ़े हैं। बेवकूफ़ी, वकूफ़ी से जो ना समझी के मालूम है। ये कॉग्निशन का कतई मीन ना समझी नहीं होता है, यहाँ समझ या ना समझ नहीं होता है, वहाँ पर होता भी है तो ट्रांसलेशन की इसमें आता है गूगल ट्रांसलेटर में, यहाँ पर नहीं होता है। इससे पहले जो है क्या मालूम है एक आया था कि जो है डिडक्टिव मेथड, इससे पहले पेपर में देखिए साइकोलॉजी के डिडक्टिव यूज हुआ। डिडक्टिव के माने हमारे पास होता है इस्तिखराजी, मगर जो है जनाब ने जो लिखा था वो भी जो है मुझे बहुत बुरा लगा
तो इस्तखराजी को उन्होंने लिखा था कि कटौती, डिडक्शन, ट्रांसलेशन में ऐसे आता है डिडक्शन के माने होते हैं कट करना, मगर यहाँ पर डिडक्टिव के माने होते हैं इस्तखराजी। तो यहाँ पर मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। तो ये चीज़ है क्या मालूम है, वहाँ पर जो है फ़र्क डालती है, फ़र्क महसूस होता है। इसीलिए हमारे जो उर्दू मीडियम के एस्पिरेंट हैं उनको सवाल ही से इसमें समझ में नहीं आया तो जवाब कैसे देंगे, सवाल ही समझ नहीं आता है तो जवाब कैसे देंगे। बहुत सारे एनजीओज़ ने कोशिश की है कि इस बार ट्रांसलेशन करें का जो है जो नुक्स है उसको दूर करने के लिए बहुत सारे लोग जो है कोशिश कर रहे हैं। उस कड़ी में मैं भी शामिल हूँ, इंशाल्लाह हम भी उसके लिए कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह जो भी आएगा करेंगे। वो भी चीज़ें हैं आपको जो क्वेश्चन पेपर समझ कर जो है जो आपको वर्ड नहीं समझ में आता है, आप पहले जो सिलेबस शुरू करने से पहले अगर पढ़ भी रहे हैं तो अगर उर्दू मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम इज़ नो प्रॉब्लम। इफ़ यू आर फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बिकॉज इंग्लिश जैसे का तैसा है, उसके अंदर कुछ भी गड़बड़ नहीं होती है। अगर आप उर्दू मीडियम से दे रहे हैं तो आप उर्दू मीडियम के अगर आप हैं तो शायद आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इस तरह के ट्रांसलेशन से, इस तरह के ट्रांसलेशन से आपको प्रॉब्लम। तो आपको एक करना क्या है, वो ट्रांसलेशन वर्ड को लेके जो है आप उर्दू का अगर आपके पास कीबोर्ड है तो आपकी फ़ोन में टाइप करके गूगल ट्रांसलेटर में डाल के देखना है कि जनाब कौन से वर्ड को क्या बोल रहे हैं। आपको सेंटेंस डाल के देखना है, इससे आसानी होगी कि आप क्या है वो कौन सी चीज़ जो है वो बता रहा है, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है। नहीं तो इंग्लिश में है तो उर्दू में डालकर देखिए, उर्दू में समझिए आप, आसानी से होता है। जब कोई क्वेश्चन आपको जो है, और एक चीज़ है वर्जन जो है उर्दू और इंग्लिश इस तरह के पूरे एक ही बुकलेट में आते हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन उर्दू में नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो उर्दू में पढ़िए। तो ये भी एक टेक्निक है एग्जामिनेशन आपके क्रैक करने की, तो ये टेक्निक्स भी आप फॉलो करनी है KTET या कर्नाटका TET एग्जामिनेशन के लिए। ये पूरी टेक्निक्स जो मैं बता रहा हूँ ये मैंने पूरी प्रैक्टिकली खुद भी यूटिलाइज किए हैं। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स आते थे, जितने भी एस्पिरेंट आए, उनके लिए भी मैंने जो है यूटिलाइज की है। ऐसे ही जो है क्या मालूम है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली जो हमने किया है वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो हम बात करते हैं ये है सिलेबस कॉपी। सिलेबस कॉपी जो है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो है कि आपके ख्वाब में, नींद में ये घूमते रहना। ऐसा घूमना बोले तभी दीवानापन नहीं, हम ही बोले कि कहाँ जाकर मैं आज क्लास को बोल के नहीं बोलना। तो घूमते रहना मतलब आपके जहन में जो है ख्याल में रहना। पेपर 1 ओपन करते ही जो है या कौन सा भी पेपर 2 ओपन करो आप, ये दोनों ओपन करो, सब में पहले है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। ये बोलती जो है वो मेरे पास नोट्स हैं क्या ना, तेरे पास नोट्स हैं क्या ना, साइकोलॉजी के नोट्स हैं ना ये मुझे। थोड़ा सर गूगल पे भी देख रहे मिल रहे नहीं जो सिलेबस में। हाँ ऐसा छोटा अटेम्प्ट करना मिल रहा है बट सिलेबस नहीं मिल रहा सही से। ऐसा छोटा तो इसके बाद से सिंपल है, अरिहंत का जो है स्टैंडर्ड मटेरियल है लेकिन इंग्लिश में है। उर्दू में जो है मेरी भी एक साइकोलॉजी की जो है किताब है, मैंने जो थोड़ी ही पब्लिश की थी, बाद में जो है मैंने उसका PDF है मेरा। अब देखेंगे अगर कुछ वक्त मिला एक 8-10 दिन में तो मैं उसको किताब की शक्ल में लाऊंगा। नहीं भी अगर मिलते हैं तो मेरी जो है किताब आपको जो है एज ए फ्री भी जो है आपको PDF मिल जाएगी, आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। सोशल की भी मैंने किताब लिखी है, आप सभी को मालूम है, उसकी भी किताब आपको जो है मेरे पास, मगर जो है उसके अंदर और ज़्यादा अपडेट चीज़ें होनी थी, मैंने नहीं किया है खैर, लेकिन जो है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये सिलेबस ओपन करते ही हमारे पास जो है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको एक चीज़ जो है आपको बताता चलूँ। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज 1 ये पेपर 1 का जो है आप लीजिए, पेपर 2 का लीजिए। तो ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के अंदर जो चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको जो है बहुत आसान चीज़ें उसके अंदर दी गई हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में। तो यहाँ पर लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 जिसको कहते हैं, तो जैसे ही आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो है देखिए लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन के नाम से है। सबसे पहले है लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन। तो लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन कहेंगे या जुबान फहमी जिसको कहते हैं, जुबान को समझना है या जुबान फहमी या जुबान की समझबूझ किस तरह की आनी है, तो इसके लिए जो क्या है लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन आपको दिया गया है। तो लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन का जो कॉन्सेप्ट है ये लैंग्वेज 1 में लीजिए या लैंग्वेज 2 में लीजिए। तो लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन में रीडिंग अनसीन पैसेज है। तो ये लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर जो है लैंग्वेज 1 में हो या लैंग्वेज 2 में, L1 एंड L2 दोनों सेम है, ये दोनों चीज़ें सेम है, दोनों 30 मार्क्स का आता है, 30 मार्क्स का यहाँ पर आता है। तो 30 मार्क्स यहाँ पर दोनों के हैं। तो इसके लिए देखिए एक चीज़ जो सिंपल आपको है वो है जो फर्स्ट आएगा जो है रीडिंग पैसेज, अनसीन पैसेज जिसको कहेंगे गैर देखा या अनदेखा मतन,
गैर देखा या अनदेखा मतलब यानी जो है कुछ देखे, जो अनदेखा यानी अनसीन, आपने अब तक नहीं देखा है, उसके ऊपर जो है ये 15 मार्क्स प्लस जो है ये 15 मार्क्स का फार्मूला है। 15 प्लस 15 का फार्मूला है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए। अनसीन पैसेज, प्रोज एंड पोएट्री, प्रोज एंड पोएट्री। सो प्रोज एंड पोएट्री, यहाँ पे पैसेज आएगा तो प्रोज एंड पोएट्री का पैसेज होगा जिसके अंदर जो है आपको होगा प्रोज एंड पोएट्री। सो व्हाट इज प्रोज एंड पोएट्री? तो यहाँ पर देखिए आप ऑलरेडी आपको मालूम है जिसको हम कहेंगे हिस्सा नस्र या हिस्सा नज्म से आएगा। तो हिस्सा नस्र और नज्म कहाँ के आएंगे? हिस्सा नस्र या नज्म हम जो देखते हैं बेसिकली जो ये चीज़ें आती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो है कहाँ से आएंगे। आप उठाकर जाकर देखिए लास्ट टाइम के जो टीईटी के अंदर जो क्वेश्चंस आए, जो नज्म दी गई या जो इबारतें दी गई, वो जो है आप हमारे 6 to, अगर पेपर 1 है तो आपका पेपर 1 हो या 2 हो, आप जो है काम करें अगर पेपर 2 के लिए दिए हैं तो 6 to जो है क्या मालूम है 10 के लिए, 10 तक के जो है फर्स्ट लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज उर्दू, फर्स्ट लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज उर्दू, एंड द नेक्स्ट फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज के लिए जो है ये प्रोज एंड पोएट्री कहाँ से आते हैं? मैक्सिमम ये आते हैं आपके फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज उर्दू से, जो हमारे कर्नाटक की टेक्स्ट बुक है। उसके बाद जो है लैंग्वेज सेकेंड अगर आपका इंग्लिश है तो जो है फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज जो इंग्लिश है वहाँ से ही आता है। और ये ग्रामर भी जो देता है, मीन्स जो है ग्रामर रिलेटेड टू द KTET, वो भी जाकर देखो आप यहीं से आया सब। मैं आपको बता रहा हूँ सफा नंबर के साथ मिसालें भी जो दी गई हैं, वो मिसालें भी जो है क्या मालूम है यहीं से आई, यहीं से है, कर्नाटक टेक्स्ट बुक से ही है। आप टेक्स्ट बुक को पढ़ना क्यों जरूरी है? लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो क्वेश्चंस जो आएंगे आपके वहीं पे आएंगे। आप क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों के आते हैं कि लैंग्वेज ये कौन सी चीज़ें आते हैं। फॉर एग्जांपल आपको जो है लैंग्वेज 1 जो है उर्दू है, तो उर्दू के लिए जो है एक प्रोज एंड पोएट्री आएगी। ग्रामर कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है या नहीं पढ़नी है ग्रामर के अंदर। देखो बहुत सारे जो है क्या मालूम लोग जो है इतना तवील ग्रामर, इतने लंबे जो है क्या मालूम है ग्रामर क्लासेस बता रहे हैं, ऐसे जो है बहुत सारे हैं। TET के लिए जो है क्या मालूम, जिस तरह खाने के साथ जो है क्या मालूम है हम साथ में अचार लेते हैं, तो ग्रामर भी अचार का काम करता है, उतना ही जो है क्या मालूम है लेना है, सप्लीमेंट ओवरलोड ज़्यादा नहीं है। तो ग्रामर के लिए जो आपको चीज़ें पढ़नी है मैं अभी बता देता हूँ, यही ग्रामर आपको आएगा। किसी को एतराज़ हो तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उनको पेपर्स पूरे 5 साल के 4-5 साल के उठाकर बताऊंगा कि ग्रामर यही आया है, 5 साल में कहीं भी नहीं पूछा। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो उर्दू ग्रामर में या लैंग्वेज में आएंगी, या इंग्लिश 1 या इंग्लिश 2, अगर आप उर्दू लैंग्वेज 1 रखते हैं पेपर 1 में तो उसके लिए क्या ग्रामर आएगा, पेपर 2 इंग्लिश में रखते हैं तो वहाँ पर ग्रामर आया। तो फॉर एग्जाम्पल जो आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको कहते हैं इंग्लिश में आएगा, अज्जा है, तकल्लुम जिसको कहेंगे बोलना है, कलाम है, तो यहाँ पर कलमा जिसको कहते हैं उर्दू में, तो कलमे की 2 किस्में हैं। उर्दू में कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। वहाँ पर अंग्रेजी में देखते हैं तो देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच वहाँ पर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंप्रेशन एंड प्रीपोजिशन। तो ये अलग अलग 8 तरह के जो क्या है वहाँ पर है, मगर हमारे पास जो है थोड़ा मैजिक जो है उर्दू में, वो मैजिक क्या है, तो उर्दू में 2 काइंड्स ऑफ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच ही समझ लीजिए। कलमे की 2 किस्में हैं, एक है मुस्तकिल कलमा और एक है गैर मुस्तकिल कलमा। मुस्तकिल कलमा क्या है, तो आपको सिंपल ज़्यादा जो जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो कलमा जो है अपने खुद माने रखता हूँ, अपने खुद माने रखता हूँ। गैर मुस्तकिल मानी नहीं रखता, दूसरों पे डिपेंड रहता है। लाइक अगर कोई अनमैरिड है, एजुकेटेड स्टूडेंट है, तो जैसे वो बावा पे डिपेंड है, उन गैर मुस्तकिल कलमा हो। बावा खुद कमा रहे हैं, मुस्तकिल कलमा हुआ। सिंपल ज़्यादा चीज़ों में जाने की नहीं है। अब उसके अंदर फिर अक़साम है हमारे जो है मुस्तकिल कलमे की जो है अक़साम है, इस्म है, ज़मीर है, सिफत है। तो ये जो है क्या है, ये अक़साम अलग अलग 4-5 अक़साम उसकी, फिर इसके जो है गैर मुस्तकिल कलमे की जो है फिर अर्फ, हिजाइया, तख़सीस, ये जो है गैर मुस्तकिल कलमे की अक़साम है।
मुस्तकिल कलमा जो खुद जो है अपने आप पे इंडिपेंडेंट, गैर मुस्तकिल कलमा जो दूसरों पे निसार। ये क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली पूछता है। उसके बाद नज़्म के से नज़्म के माने पूछेगा, रुबाई के माने पूछेगा। ये जो चीज़ें एसएसएलसी के सिलेबस में है, 10th के सिलेबस में, 9th के सिलेबस में है, 6th के सिलेबस में, यहीं से तो ग्रामर आ रहा है। आप जाकर देखिए, आप अगर बोल रहा हूँ तो इसके बाद आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो यही ग्रामर आपको पूछेगा। जैसे गज़ल है या नज़्म की तारीफ पूछेगा, नज़्म क्या है कि नज़्म की अक़साम पूछेगा। गज़ल है तो गज़ल किसे कहते हैं, काफ़िया किसे कहते हैं, रदीफ़ किसे कहते हैं। इसी तरह सनाए वदाए जिसको कहते हैं, जो सनत तज़ाद है, सनत तजनीस है, सनत मुरातुन नज़ीर है, ये अलग अलग जो तलमी है, ये अलग अलग तरह की चीज़ें जो है क्या मालूम है। यही चीज़ें तो ग्रामर में इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। आपको ये नहीं पूछेगा या इल्म अरूज से मुताल्लिक़ छोटी छोटी चीज़ें जो रिलेटेड करती हैं, वो चीज़ें वहाँ पर जो सिलेबस में 6 to 10th के है वही चीज़ें पूछेगा। आपको सिलेबस ये ग्रामर का कहाँ से देखना है, हर सबक के बाद जो है ये भी देखिए सिलसिलावार जो ग्रामर है, सिलसिलावार ग्रामर है। वो ग्रामर का आप क्या है, लिखने बहुत टाइम होता है, मुझे परेशान और मैं बोले तो पढ़ लीजिए, क्योंकि आप जो उर्दू मीडियम से हैं तो आपको आसानी होती है। आप कुछ भी नहीं है, वो एक पेपर लेना है, सफ़ा लेना है, जेरोक्स कराना है, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार के प्रिंट आउट निकाल के टीटी ग्रामर बोल के एक पेपर लगा के ऊपर रख देना, खत्म, सिंपल काम। उससे हटकर ग्रामर आता नहीं, आया भी नहीं अब तक, ठीक है। अब जाकर पेपर चेक कीजिए तो ये कर सकते हैं। सेम लाइक दैट यू हैव टू डू फॉर द सेक ऑफ ए लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 इंग्लिश और कन्नड़ा, आप जो भी रखा है वही काम कीजिए। ओके, कन्नड़ा आपका भी है तो वहीं से वर्णमाला से शुरू कीजिए, जो भी चीज़ें वहाँ पर आपकी हैं ये चीज़ें ही फॉलो कीजिए। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी स्कोर। आपके लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में जो है स्कोर कितना होना है टीटी पास करने के लिए, मैं आपको सिंपल बताता हूँ टेक्निक्स जो है आपका स्कोर किस तरह होना है। तो आपका जो है L1 जिसको कहेंगे लैंग्वेज 1 जो है, प्रोबेबली बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है लैंग्वेज 1 उर्दू ही रखे होंगे या जो इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश रखे होंगे। तो लैंग्वेज 1 में आपका मिनिमम जो मार्क्स होने हैं वो 26, कितने होने हैं 26, मैक्सिमम आपको करने हैं 30। मिनिमम मार्क्स 26 नहीं कर सकते, इतना आसान है, 26 मार्क्स नहीं कर सकते। मुहावरे आते हैं थोड़े, ज़रबुल मिसल, मुहावरे की पहचान क्या है, सिंपल, जिसमें जो ना आया मुहावरा, ना नहीं है। ना क्या है, मिसाल पर जो है जो है क्या मालूम, नाक कटाना, नैन लगाना, दिल चुराना, कान भरना, ये अलग अलग तरह के जो है, दिल चुरा लेते हैं क्या कोई नहीं, मुहावरा है। कान भरना है, भरते हैं क्या कोई नहीं, कान भरने का। तो इस तरह के ना ना जो आएगा वो मुहावरा होगा। इसी तरह जो है क्या मालूम है, हमारे पास ज़रूर मिसल की पहचान आसानी है, जैसे मिसाल के तौर पर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसी तरह जो है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये अलग अलग जो है क्या मालूम 9 2 11, ये अलग अलग तरह की चीज़ें जो है क्या मालूम है जो इस्तेमाल होती हैं मुहावरे के से ज़रबुल मिसल में आते हैं। ज़रबुल मिसल से ख़ास मौक़िया काश इस पर जो इस्तेमाल रस्सी चल गई पर बल ना गया। तो ये चीज़ें पूरी कहाँ है, मैं जो बोल रहा हूँ आपको जो है आपके जो है आपकी सिलेबस में है। फर्स्ट लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज उर्दू के सिलेबस के लिए ये चीज़ें वहाँ पर है, आप वही पढ़िए। दूसरा पढ़ने के लिए जो ज़्यादा इतने तो मोटे मोटे ग्रामर की किताबें, बड़े बड़े लंबी लंबी लेंदी जो है ग्रामर की जो है ये वीडियोज़ वगैरह वो देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप ग्रामर इतना ही पढ़िए, आप जाकर देखिए, बहुत सारी चीज़ें वहीं पर आपको मिल जाएगी। ये ग्रामर बेसिक आपको आएगा। इसी तरह जो है आपको जो है पंक्चुएशंस जो है, पंक्चुएशंस के मुताबिक भी वहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, क्लास में भी 2-3 मतलब पंक्चुएशंस के माने में कुछ आराब जिसको कहते हैं, आराब उर्दू में कहते हैं, वो भी चीज़ें आपको देखनी है। उसके लिए यहाँ पर लैंग्वेज 2 के लिए जो है सिंपल वही फार्मूले पूरे फॉलो कीजिए। योंडर फाउंडर जो लास्ट टाइम पे जो राइमिंग वर्ड्स जो इस्तेमाल में वर्ड आए थे वो कहाँ से थे, वो भी चीज़ जाके देखिए, आप नज़में वहीं पर हैं। फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज में जो है वो जो लास्ट टाइम पे जो नज़्म आई थी वो नज़्म जो है 6th या 7th में गालिबन वो भी है, और जो नज़्म जो उर्दू में आई थी वो भी 6th में, मोती वगैरह बरसात वगैरह जो भी चीज़ें इस्तेमाल हुई थी वो भी कहाँ से है, 6th किताब में जाकर देखो आप। मैं अगर आपको झूठ बोल रहा हूँ तो आप किताबें देख चेक कीजिए, जो क्वेश्चन जो नज़में वगैरह आ रहे हैं ये पूरे वही किताबों से आते हैं। ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की किरकिरी खत्म, इस तरह आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। थोड़ा साइकोलॉजी के लिए भी आपको भी जो है थोड़ा नफ्सियाती तौर पर तैयार होना चाहिए। साइकोलॉजिकली यू हैव टू बी प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द सेक ऑफ क्रैकिंग साइकोलॉजी। तो जो है साइकोलॉजी क्रैक करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ करना है। साइकोलॉजी को आपको पढ़ना है पहले, सबसे पहले चीज़ जो आपके पास जैसे ओपन करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नाम से शुरू होगा। क्या शुरू होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का कॉन्सेप्ट है।
तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड बोलते हैं किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, बच्चा। तो इसी तरह जो है क्या मालूम है, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी तरक्की या नशोनुमा, किसकी नशोनुमा है, बच्चे की नशोनुमा। बच्चे को देखना है, अगर मम्मी है कोई यहाँ तो भी उन्होंने समझ जाते हैं बच्चे को किस तरह देखना है। तो बहुत सारे जो अल्लाह ताला जो हिम्मत दे वो उन माँ बाप को। आज के बच्चे थोड़े शरीर ज़्यादा हैं तो बच्चों को देखना है। तो यहाँ पर बच्चे को टीटी के लिए देखिए, लाइफ टाइम में आप जी जो है जब मम्मी बनेंगे आएंगे तो आपको यूटिलाइज होगा। ये चीज़ें याद रखिए। साइकोलॉजी पढ़ने के दो फायदे टीटी के, एक तो जो है एग्ज़ाम के लिए, दूसरा घर के लिए भी जो है काम आएगा। ठीक है, वहाँ एग्ज़ाम में नहीं पास हुए तो भी जो है रुखसाना पड़ जाना, घर में जो है साइकोलॉजी यूटिलाइज करेंगे। तो हम ये बात करते हैं कि जो साइकोलॉजी के अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट को समझना है, सिर्फ उसको बच्चे को देखना है। एक बार ऐसे ही बार बच्चे को देखो बोले तो 4-5 टीचर थे हमारे स्कूल में काम करते थे, हर बार बोलते रहता हूँ इनका हिस्सा, तो बेचारे जो है क्या मालूम फ़ोन करके बोलते हैं, जब ये बात सुनते हैं यहाँ सर हमारे एग्जाम्पल आज भी दे रहे हैं आप, क्या बोलते हैं, बच्चे को एक बुला कर बिठा कर देखे देते हो 5 मिनट। यहाँ पर बच्चे को देखने से मीन्स द नेचुरल इन्वायरमेंट में देखना है, फितरी माहौल में देखना है। जॉन डेवी को याद करना है, किसको याद करना है, जॉन डेवी को याद करना है, रूसे को याद करना है, मारिया मोंटेसरी को याद करना है। ये आप जो है उनको याद करेंगे तो 1 महीने के लिए आपके अंदर जो है आप भी मारिया मोंटेसरी बन जाएंगे। आप भी अपने अंदर रूसो को लेकर आइए, आपके अंदर जो है क्या मालूम है जेबी वैटसन की रूह दौड़ने लगी, जेबी वैटसन की रूह दौड़ने लगी। बिहेवियर पैटर्न को देखना है, जेबी वैटसन बन जाएगी। आपको जो है किसी के जो माइंड को पढ़ना है एरिस्टोटल बन जाएंगे। अगर आपको जो है किसी को जो मॉरल बिहेवियर को देखना है कोरल बन जाएंगे। आपको किसी को सोशल जो है डेवलपमेंट देखना है वेगोट्स्काई बन जाएंगे। आपको कॉग्निशन समझना है तो जो है जीन प्याजे बन जाएंगे। अगर आपको जो है क्या एनवायरमेंट बच्चे का समझना है तो ब्राउन फेनबर्नर बन जाएंगे। अगर आपके बच्चे को जो है क्या मालूम है बहुत करीब से देखना है तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट स्टॉनली हॉल बन जाएंगे। आपको जो है मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट बनना है तो आपको जो है जेबी वैटसन की तरफ देखना है। अगर आपको जो है एंशिएंट साइकोलॉजिस्ट बनना है सिगमंड फ्राइड को देखिए। तो ये अलग अलग चीज़ें मैंने जितने नाम दिए इस नाम से हटकर दूसरा नहीं है। इसी तरह आपके बच्चे के इंटेलिजेंस को चेक करना है, आपको जो है क्या मालूम है गार्डनर बनना पड़ेगा। इसी तरह आपको जो है क्या मालूम है अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट जो है स्टर्नबर्ग है, स्परमैन है, ये लोग अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं। इतने साइकोलॉजिस्ट में जो नाम बोला हूँ इन्हीं को याद रखना है, दूसरों को याद नहीं रखना है। इसी तरह आपको जो बच्चे के लर्निंग के बारे में मालूम करना है। आप अपने आप को जो है ब्रूनर बनाइए। बच्चे की जो है आपको जो है इंसाइटफुल लर्निंग जिसको कहते हैं वो पढ़ना है। तो वहाँ पर जो है आपको इंसाइटफुल लर्निंग किसका है कॉन्सेप्ट, ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग किसका है, पाउलो का है। तो पाउलो बन जाइए। ये अलग अलग स्किनर बन जाइए। जो क्या मालूम है ये आपको अगर आते हैं सर बॉन्ड थ्योरी, स्टिमुलेशन रेस्पॉन्स थ्योरी, थॉर्नडाइक की है। कहाँ है थॉर्नडाइक, हाँ जी आप थॉर्नडाइक हैं। तो ये आप थॉर्नडाइक बन जाइए। यकीन रखिए मैं ये पूरे साइकोलॉजिस्ट के नाम जितने बोला हूँ इनकी अलग अलग थ्योरी और इतने थ्योरीज पढ़ना है। क्लियर, इतने थ्योरीज अराउंड जो 15-16 थ्योरीज आपके पास हैं। तो आप ये अलग अलग कॉन्सेप्ट को अलग अलग खाने में रखकर पढ़ेंगे तो साइकोलॉजी बहुत आसान है। आते हैं तो बीएड में भी हमने देखा है, बहुत सारी जगहों पर हमने भी देखा है। आते हैं जो प्रैक्टिस जिनको जो है आज हमारा अलमिया ये है कि जो है वो लोग हमें पढ़ाने आ रहे हैं जिन्हें पढ़ाने नहीं आता, वो लोग हमें पढ़ाने आते हैं जिन्हें पढ़ाने नहीं आता है। तो यही वो चीज़ है कि हम भी पढ़ नहीं पाते। पढ़ने का पीछे ड्रॉबैक ये है कि जो है वो लोग पढ़ाने आते हैं जिनको पढ़ाने नहीं आता, इसलिए हम भी पढ़ नहीं पाते हैं। ये सिंपल थ्योरी देखिए, बच्चा स्लो लर्नर है या नहीं पढ़ता है तो आप बच्चे को 100% जो है कि हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बिकॉज टीचर्स इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल इफ ए चाइल्ड इज गेटिंग इज मूविंग फ्रॉम द लर्नर टू द स्लो लर्नर। बच्चा अगर लर्नर अच्छा जो है एक्टिव लर्नर है उससे हटकर स्लो लर्नर जा रहा है तो उसके अंदर जो कहीं ना कहीं जो है जो इल्ज़ाम मेरे सर भी आए वरना खतर का गुनहगार वो थोड़ी है नहीं, कहीं ना कहीं जो इल्ज़ाम जो है मेरे सर भी जो है ज़रूर आना चाहिए। तो ये भी टीचर आप फीलिंग करें, ये समझें। तो चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर जितने मैं नाम बोला हूँ सबके थ्योरीज आपको पढ़ना है। मैं आपको और एक बार भी जो है क्या मालूम बोलूँगा कि जो है ये चीज़ें अलग अलग चीज़ें आपको पढ़नी है। ओके, आप जो है घबराइए मत। बहुत सारी चीज़ें में एक
पूरी चीज़ें मेरे यहीं पर भी नहीं, यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सी जगहों पर भी मैं बताते रहता हूँ, ताकि जो है आने वाले इसमें जो है हमारा एक ही मोटिव है कि आप लोग जो है क्रैक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पोस्ट बाकी में। उर्दू मीडियम के कितने हैं इसमें? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है फीचर टीचर्स नज़र आ रहे हैं। आमीन बोलिए एक बार ज़रूर। हाँ, सर, ताकि जो साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी की बुकलेट पहले हम बीएड में था हमारे साइंस मीन्स नफ्सियात की बुक, अब ये साइकोलॉजिस्ट की बुक हमको अवेलेबल नहीं है। देखिए साइकोलॉजिस्ट की बुक नहीं मिलती है, कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं क्वेश्चन था, एक थ्योरी है, जैसे डेवलपमेंट आप ओपन करेंगे, हम आपके सामने जो क्या मालूम है भैया, सिगमंड फ्राइड मुंह खोलते सामने आएंगे। कौन आएंगे? सिगमंड फ्राइड आएंगे, आकर बोलेंगे कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी। क्या बोलेंगे? साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो है बोलेंगे। इसी तरह आप जैसा थोड़ा आगे जाएंगे तो कॉग्निटिव जो है डेवलपमेंट लिए जो जिन प्याजे आपको हाथ करना शुरू करेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट लिए जिन प्याजे आपको हाथ करना शुरू करेंगे। इसी तरह इन्वायरमेंटल थ्योरी जो पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वहाँ पर ब्राउन फेनब्रेनर जो है आपको सलाम करेंगे। क्या करेंगे? ब्राउन फेनब्रेनर जो आपको सलाम करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको इस तरह टेक्निक से याद रखना है। इसी तरह आगे जाएंगे मॉरल डेवलपमेंट, तो कोहलबर्ग आपको अखलाक सिखाते हुए मिलेंगे। कोहलबर्ग क्या सिखाते मिलेंगे? मॉरलिटी का सबक आपको कौन देंगे? कोहलबर्ग अपने 3 स्टेजेस लिए, प्री कन्वेंशन, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी लिए आपको मिलेंगे जो है। इसी तरह कॉग्निटिव डेवलपमेंट ने कहा कि अकल आपको ठिकाने, आपकी अकल लगाने के लिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट कौन लेके आएंगे? जीन प्याजे लेकर आएंगे, और 4 तरह के जो क्या मालूम है आपको मुख्य मारेंगे। पहला मुख्य मारेंगे 0 to 2 ईयर, दैट इज द विच मॉरलिटी इट इज, प्री कन्वेंशनल, विच स्टेट इट इज, कौन सा है? सेंसरी मोटार स्टेट जिसको बोलते हैं। सेंस यानी जो है आपकी बचपन में आपको बचपन याद दिलाएंगे, उन्हें देख बेटा तेरा बचपन 0 to 2 ईयर कैसा था, बोलते हैं तो पूरा सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू सीखा बोलकर जो है आपको सिखाएंगे। माँ को देखकर बच्चा जो है मुस्कुराता है, तो वही हमको देखकर जो है यहाँ पलाना शुरू करता है, वही बिकॉज वो अपनी जो सेंस से जो इजहार कर रहा है जज्बात का है। उसके बाद है सेंसरी मोटार स्टेज के बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है 2 to 7 ईयर। आपकी जो है क्या 2 साल से लेकर जो है 7 साल तक आपकी अकल कैसी थी वो आपको बताएंगे। कौन बताएंगे? जीन प्याजे। इसी तरह जो है क्या मालूम है हमारे पास है 3rd स्टेज है कॉन्क्रीट स्टेज। कॉन्क्रीट स्टेज में जो है जिसको रैशनल स्टेज भी कहेंगे, यहाँ पर किस तरह से चीज़ें होती हैं। रैशनल 4th आता है, तो यहाँ पर कॉन्क्रीट स्टेज यानी जो चीज़ों के साथ हमारा जो है कॉन्क्रीट रिलेशन कैसा था, हम चीज़ों से किस तरह से जो मिलाप करते थे चीज़ें, उस टाइम पे कॉन्क्रीट स्टेज में आएंगी। इस तरह जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हमारे तीनों क्वालिटीज़ अब कैसे हमारे हैं, तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो 4th स्टेज है वो उसके अंदर जो है क्या मालूम है आपको जीन प्याजे इस तरह बताने शुरू करेंगे। इसी तरह जो है हमारे पास और एक है जो है हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी है जैसे सिगमंड फ्राइड की है। सिगमंड फ्राइड की थ्योरी के अंदर जो है आईडी कहेंगे, ईद जिसको पढ़ते हैं आप वो है, उसके बाद ईगो है और एक सुपर ईगो है। तो ईगो बोलते हैं हमारे कितना ईगो है देखो उनको बाजू बोलते हैं ना सिखिलिया एक दूसरे को आई छोड़ो ना, उसका एंगेजमेंट है जब से बहुत ही ज़्यादा ही चाहिए। हाँ कल 2 सहेलियाँ, मैं जा रहा था रास्ते से, 2 सहेलियाँ बात करते हुए जा रहे थे, गालिबन आसपास से कॉलेज के ही हैं, कि जो है क्या मालूम है देखो ना कितना इनकी ईगो आया, उसको एंगेजमेंट हुए जब से वो दोनों जो है बोले मैं बोला शादी हुई तो क्या हाल होता है कि बोल मैं निकल गया। अभी जो है तो मसला ये है कि जो है क्या मालूम है बोलने का मतलब ये है कि इसी तरह जो है क्या मालूम है इस ईगो का कॉन्सेप्ट वो नहीं, यहाँ पर शऊर, उसके बाद जो है क्या मालूम है सबसे पहले जो है बुनियादी तौर पर शऊर किस तरह हमारा है वो है। ईगो के माने यहाँ पर शऊर से रिलेटेड है। ईगो बोलती वो अना पसंदी है, मगर ये हमारी अना क्या है यानी हमारा शऊर क्या है, शऊर के ताल्लुक से जो है यहाँ पर जो है ईगो एंड सुपर ईगो है। ये कब डेवलप होता है, फॉर एग्जांपल कोई छोटा बच्चा है तो उसके अंदर जो है किस तरह की अना आती है, या जब बच्चा जो है अपने माँ बाप से मिलता है तो किस तरह इसके अंदर जो आती है, या अना फौके अना जिसको अलग अलग कहा जाता है, तो ये शऊर तहत शऊर जिसको अलग अलग चीज़ों में बयान किया जाता है, तो ये किस तरह शऊर आता है। तो ये चीज़ें जो ईगो सुपर ईगो ये चीज़ें ऐसी मिसाल है जैसे जो है एक आपको चीज़ें बताता हूँ। जब कोई नौजवान हमारा गाड़ी चलाता है, बाइक चलाता है, तो देखिए ऐसे चलाता है फराटे मारते कि है वो ब्रिज जो स्पीड ब्रेकर आते हैं वो भी पनाह मांगे कि मैं कैसी जगह पे आया किस गाड़ी के नीचे है। उसके बाद जैसे थोड़ी उम्र होती है वो थोड़ा जो स्पीड में जाते रहते हैं, जैसे जो क्या मालूम है 40 क्रॉस करते ही हम बाजू से जो नौजवान जा चिच्चा जरा 2200 से जाओ मतलब है नहीं। ये चीज़ें जो है क्या मालूम है आती है, तो यही जो क्या मालूम है
फेथ ईगो सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट है। ये चीज़ें मैं आपको जब थ्योरी पूरी समझाऊंगा तो समझाऊंगा उन भी जो है आपको साइकोसेक्सुअल थ्योरी के अंदर इसको जो है सेक्सुअल स्टिमुलेशन जिसको कहते हैं, सेक्सुअल स्टिमुलेशन बोलते ही जो है हमारे वर्ड सुनते ही, ये वर्ड सुनते ही बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होते हैं कि जो है क्या मालूम है क्या इन लोग बोलने जा रहे हैं। तो सेक्स इज मीन जेंडर, सिंपली जेंडर। बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है ऐसा क्या अम्मो क्या किस लिखे कोई होता नहीं है, बहुत सारे जो दिखता है मैं ओपन हार्ट को मैं वही चीज़ें बता देता हूँ। तो यहाँ पर सेक्सुअल स्टिमुलेशन यानी द बर्थ ऑफ द जेनेटिकल क्वालिटीज फ्रॉम द बर्थ से लेकर कौन से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा बच्चा है, इसको भी जो क्या मालूम है अपना जेंडर स्टिमुलेशन होता है, हार्मोनल चेंजेस जब आते रहते हैं तो अपने आप का सेटिस्फैक्शन जो होता है फर्स्ट स्टेज है उसका। सबसे पहले जो है बच्चा क्या करता है, माँ का दूध पीता है, तो इसको ओरल स्टेज कहा गया। उसके बाद जो है क्या मालूम है एनाल स्टेज है, लेटेंसी है, जेनिटल है, अलग अलग जो है क्या मालूम है स्टेजेस जो है आपके वहाँ पर है 1 2 3 ईयर 3 2 से 6 ईयर, ऐसा अलग अलग जो स्टेजेस उसने बताया है कौन से स्टेज में कौन सी क्वालिटी जो है डेवलप होती है, कौन से स्टेज में जो है कौन सा सेक्सुअल स्टिमुलेशन उसके अंदर आता है, तो किस तरह उसको अपने आप को पूरा जो है क्या मालूम है कर सकता है, करता है। सिगमंड फ्राइड ने साइकोसेक्सुअल थ्योरी में बताया। मिसाल के तौर पर फर्स्ट स्टेज जो आपका ओरल स्टेज है, मैं एक बता दूंगा उसके बारे में। ओरल स्टेज के अंदर कहता है कि बच्चा अपने सेक्सुअल स्टिमुलेशन को खामोश करता है, ठंडा करता है, ये वो चीज़ों को जो है अपनी जिनसी जो मोहरकात हैं उसको जो है पूरा करने के लिए वो माँ का दूध पीता है, जिससे उसको जो है दिली तस्कीन सुकून मिलता है, ये राहत मिलती है। ये चीज़ें बताएं, अगर ये चीज़ें अगर बचपन में नहीं होती हैं, माँ का दूध अगर वो नहीं पीता है, माँ उसको नहीं पिलाती है, बराबर की इंतकाल होता है, ये चीज़ नहीं होती तो आगे जाकर जो अपने नाखून कपना शुरू करेगा, अपना अंगूठा मुँह में रखकर फिरना शुरू करेगा। मैंने देखा है शादी के बाद भी कुछ बच्चे अंगूठा चूसते हुए मैंने देखा है, बच्चों को भी देखा है, ये ऐसा नहीं क्या। तो ये सिगमंड फ्राइड करता है कि ओरल जो उनके जो स्टिमुलेशन था वो स्टिमुलेशन पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से नाखून करते हुए मुँह में उंगली डालते आपको ये होंगे ये चीज़ें, या सिगरेट लगाते हुए सिगरेट नोशी आदत है, ये जो है इसका जो है ये एडिक्शन जो है वो चीज़ें ये स्टेज से ताल्लुक़ रखती हैं। सेक्सुअल थ्योरी इसे अनाल थ्योरी है, अलग अलग टॉयलेट ट्रेनिंग पीरियड जिसको कहा गया है वो किस तरह होगा। ये इसके साथ जो लास्ट स्टेज जो आपका प्यूबर्टी है, जेनिटल स्टेज कहेंगे, एन इंडिविजुअल एन अडल्ट इज टू बी एबल टू बी जनरेट न्यू जनरेशन है, उसको किस तरह से ये करना है। एक कहेंगे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन एनिमल जो कॉन्सेप्ट है वो आता है लास्ट जेनिटल स्टेज में, तो वो जो है होगा। तो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग क्वालिटीज़ होंगे। फॉर एग्जांपल जो है हम बात करते हैं अगर 6 से 8 साल का जो है लेटेंसी पीरियड है, तो उस पीरियड में बच्चा किस तरह जो एक्ट करेगा, अपोजिट जेंडर की तरफ जाना शुरू होगा। लड़की जो है जो बेटी होगी वो बाप की तरफ जो अट्रैक्ट होगी, बेटा माँ की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये चीज़ें जो क्या मालूम है थियरी को इस तरह समझने आसानी से समझिए, आपको जो है थियरी पढ़ना नहीं है, आपको जो है जेनेटल नेचर इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। बहुत आसान स्टेजेस हैं, ये बहुत सारे हैं। इसी तरह मॉरलिटी का जो है कोलबर्ग का वो पढ़ना है आपको। इसके साथ ही जो है क्या मालूम मॉरलिटी के अंदर किस तरह से प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी, बच्चे के अंदर जो है अखलाकियत किस तरह होती है, फर्स्ट स्टेज में किस तरह होती हैं, बच्चे देखकर इमिटेट करते हैं या जो नकल करते हुए सीखते हैं, ये चीज़ें पूरी जो है आपको वहाँ पर जो है थीरीज के अंदर मिलेगी। इसी के साथ जो है आपकी जो है सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है वेगनस्टाइन की थ्योरी है, सोशल कंस्ट्रक्ट जिसको कहेंगे, वो चीज़ें जो है क्या मालूम है आपको याद रखनी है। एक बच्चे के अंदर सोशल बिहेवियर की कंस्ट्रक्टिविज्म किस तरह आता है उसके ऊपर वो थ्योरीज है। इंटेलिजेंस थ्योरी के अंदर जो है कि आपको यूनिफैक्टर, टू फैक्टर, मल्टीफैक्टर एंड ट्राइआर्किक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यूनिफैक्टर, देखिए इंटेलिजेंस जिसको कहेंगे यूनिफैक्टर, टू फैक्टर, ट्राइआर्किक या मल्टीफैक्टर, जिसमें जो 8 फोल्ड इंटेलिजेंस एक ही है, वो है होवर्ड गार्डनर की थ्योरी है, ईस्टनबर्ग की है, स्परमैन की थ्योरी है। तो ये अलग अलग लोगों ने क्या कहा, जॉन डेवी ने क्या कहा इंटेलिजेंस के रिलेटेड, ये पूरे लोगों के जो क्या मालूम है आपको थ्योरीज पढ़ना है। टीआरकिक, टूआरकिक या जो क्या मालूम है हम कहेंगे बॉडीली स्पेशल, अलग अलग जो चीज़ें हैं। अगर कोई जो है अच्छा डांसर है तो वो भी एक इंटेलिजेंस है गार्डनर के मुताबिक, अच्छा म्यूजिशियन है तो वो भी एक इंटेलिजेंस है। आप जो है लोगों से जो है अपनी बात लोगों तक बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से फैला सकते हैं। पॉलिटिशियन है आप तो आपकी भी एक इंटेलिजेंस है। तो अलग अलग क्वालिटीज़ को जो है, अगर पोएट है तो आपकी भी वो इंटेलिजेंस है, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपकी इंटेलिजेंस है, जिम्नास्टिक है आपकी इंटेलिजेंस है, एथलेटिक्स है, ये अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस जो कैटेगरीज को वहाँ पर उसने बताया है। तो ये होवर्ड गार्डनर की जो है 8 फोल्ड इंटेलिजेंस थ्योरी को आपको
पढ़ना है, वहाँ पर ये चीज़ें जो है क्या मालूम है उसके अंदर शामिल की गई है। अब इसके बाद जो है डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसको कहते हैं, वो उसको भी आपको पढ़ना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सिंपली ग्रोथ, व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट, डू यू नो द मीनिंग ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किसको बोलेंगे, कोई जे तरक्की कैसी, सुबह में क्या मालूम फकीर थे, शाम में देखिए बगले के ऊपर ठहरे हुए हाई फाई कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट है। ये हम बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट, हमको क्या पढ़ना है, चाइल्ड डेवलपमेंट। माँ की कोख से लेकर जो है क्या मालूम है जो है बच्चा मरने तक, दौर तक जाने तक जो है कौन से डेवलपमेंट आते हैं, लेकिन आपको एग्जामिनेशन पर्पस अप टू जो है क्या मालूम है एडोलेसेंस पीरियड पढ़ना है। आपको अप टू एडोलेसेंट पीरियड जो है आपको पढ़ना है। फोकस आपका जो है क्या मालूम है फ्रॉम जो है बर्थ से रहना चाहिए। अगर हम प्री बर्थ देखते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग हैं कॉन्सेप्ट हैं, सीटेट वगैरह में दिया हुआ है कि जो क्या मालूम है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ प्रोसेस जिसको कहते हैं हम, वो हम स्पर्म से लेकर जो है पूरा लास्ट तक आपको जो है क्या मालूम है मरने तक की वहाँ पर चीज़ें जो है बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने लिखी हैं, लेकिन आपको पढ़ना है बर्थ के बाद पढ़ना है। सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही दिए जाए, जस्ट आपके नॉलेज के लिए देता है कि प्रेगनेंसी कितने पीरियड, कितने मंथ, कितने वीक्स की जो है प्रेगनेंसी होती है, कितने मंथ्स की होती है, या कौन से प्रोसेस में क्या होता है, बच्चे का पहले जो है जब होता है तो कौन सी चीज़ बनती है, हेड है, या अलग अलग चीज़ें जो है क्या मालूम है टॉप टू बॉटम डेवलपमेंट होता है, ये किस तरह की ये अलग अलग वहाँ पर दिया गया। मगर आपको चाइल्ड साइकोलॉजी जो टीटी के लिए पढ़ना है, बर्थ टू जो है अप टू एडोलेसेंट पीरियड आपको पढ़ना है। फ्रॉम जो है बर्थ टू एडोलेसेंट पीरियड मींस 0 to 2 ईयर, इट इज कॉल्ड एज व्हिच पीरियड इट इज इन्फेंसी, इन्फेंट जिसको कहते हैं इन्फेंस एरा है। उसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर, उसके बाद 6 to 11 ईयर, दैट इज क्या जो है क्या चाइल्ड अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड है, उसके बाद लेटर चाइल्डहुड या एडोलेसेंट पीरियड है। तो ये पीरियड के अलग अलग क्वालिटीज पढ़ना है। और डेवलपमेंट तो 4 कॉन्टेक्स्ट में देखना है, एक है आपको फिजिकल है, बायोलॉजिकल है, उसके बाद जो है आपको जो है क्या मालूम है कॉग्निटिव है, और लास्ट है सोशल। एक बच्चे का डेवलपमेंट देखना है आपको, तो कितनी चीजें देखना है डेवलपमेंट में जी, डेवलपमेंट में कितनी चीजें देखनी है, डेवलपमेंट के अंदर कौन सी चीजें देखनी है, 4 चीजें आपको देखनी है। बच्चे के अंदर जो है 4 चीजें देखना है, और ये 4 चीजों के अंदर भी बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। सबसे पहले आता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट। एक बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट आप किस तरह देखें, फिजिकल डेवलपमेंट में क्या आएगा, हाइट एंड वेट आपका आएगा, हाइट एंड वेट सिंपल। उसके बाद बायोलॉजिकल डेवलपमेंट है, नेक्स्ट बायोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या आएगा, कैन यू टेल मी प्लीज, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट बोलती जे हाँ हार्मोनल डेवलपमेंट कौन सा आएगा, हार्मोन्स हमारे पास किस तरह जो है आते हैं, बोलते हैं देखो क्या तलता नहीं और पट्टी बोलते हैं, पट्टा बोलते हैं, आप कभी सुने नहीं सुने आपने, ये अंदर उन्हें नहीं है, उसके अंदर भी एक जो अंदर चीज है जो उसको जो क्या मालूम है उछलने लगा रही है, वो उसके हार्मोन्स क्या है जे हार्मोन्स। अभी देखते हैं बोला क्या क्या डेवलपमेंट है जी, बोला इसके अंदर हार्मोन का डेवलपमेंट। एक बहुत सारे लोग कहते हैं चंचल उम्र, क्या बोलते हैं जे चंचल उम्र, कभी आप सुने नहीं सुने आप, तो ये चंचल उम्र का ही नतीजा है। कौन सी उम्र है, चंचल उम्र का ही नतीजा है कि बच्चे चंचल होते हैं। इफ यू कंपेयर टू एक प्रैक्टिकल चीज बनाओ कि जो है जो बच्चियां जो टीन एज में होती हैं या बच्चे होते हैं उनको अपने आप को संभालना चाहिए। देखिए आप बहुत ज़्यादा जो क्या मालूम है भाग हो गए बच्चे, वैसे इंसिडेंट आप सुनते हैं कभी, तो इंसिडेंट सुनते ही पूछना एज क्या आती है आपको मालूम हो जाता है सडनली, जब पूछना 18 थी 19 थी, क्योंकि एज के अंदर जो है जो हमारा हार्मोनल स्टिमुलेशन है, जो महरिकात हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इसलिए चल मत बोलते हैं, वो चीज़ें होते रहते हैं, इसलिए जो क्या मालूम है फिसल जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत सारे हैं। तो बाद में 25-24 वाले देखे जरा मैच्योर रहते हैं तो समझ में आता है क्या बोल रहे, सामने वाले क्या बोल रही है या क्या बोल रहे हैं, दोनों लाइन। ये नो मोहतरमा कौन सी लाइन पे जा रहे हैं मेरे साथ, ये जनाब मेरे साथ कौन सी लाइन पे जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेज अब बोला तो क्या होगा मुझे मालूम है, उनको ऑलरेडी बोलते थे। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल रहते हैं, कई को ना आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, क्या आप बोले ऐसा कौन तो बोले, तो समझ जाना है लाइन एक ना अलग लाइन पे जा रहा बोल के मालूम होता है, तो दूसरे रहे तो आई अल्लाह ऐसा ये चीज़ें जो क्या मालूम है हमारे पास फील होते हैं।
तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर डेवलपमेंट है। फर्स्ट है फिजिकल बायोलॉजिकल है, इसके बाद है हमारे पास कॉग्निटिव लेवल पर। कॉग्निटिव बोलती है बच्चे के इंटेलिजेंस पे जाना, सीधा वहाँ पर है, तो ये चीज़ें रिलेट करती हैं। उसके बाद ऑलरेडी और एक अगली चीज़ है वो हमारी है वो सोशल डेवलपमेंट। सोशल के अंदर दो तीन चीज़ें, एक मॉरल डेवलपमेंट और एक है सोशल बिहेवियर, जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसी में आता है। समाज यहाँ पर बच्चे का होता है, मॉरल डेवलपमेंट यहाँ पर आता है, तो सोशल डेवलपमेंट के अंदर ये चीज़ शामिल रहती है। मैं समझता हूँ सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अब बोर कौन हो रहे हैं हाथ उठाइए। नहीं हो रहा अलहमदुलिल्लाह। तो जो बोलूँगा मैं भी आपको जो क्या मालूम है वैसा नहीं है। तो हुआ ये कि जो है एक शायर साहब जो है बैठे हुए, तो सुने हैं दूसरे जो लोग ऑलरेडी हैं, एक शायर साहब स्टेज पर आकर जो है शेर सुना रहे थे कि जो है पहला मिसरा उन्होंने पढ़ा, तेरी जुल्फ के साए तले रात का अंधेरा हो जाएगा। क्या पढ़ा उन्होंने? जुल्फ के साए तले, यानी जुल्फ कहते हैं औरत के बाल को, गेसू कहता है मर्द के बाल को, इसीलिए गेसू दराज बंदा नवाज। ओके, तो यहाँ पर जो है तेरी जुल्फ के साए तले रात का अंधेरा हो जाएगा। जब 3 से 4 मरतबा शायर साहब ने ये पढ़ा, जब जो है कुछ अगला मिसरा नहीं पढ़े तो एक बदमाश जो है शरीर जो है सामाइन में से एक बंदा उठकर बोला कि सर मुंडवा के आ जाओ उजाला हो जाएगा। क्या है? सर मुंडवा के आ जाओ उजाला हो जाएगा। इसी तरह अकबर बादशाह के दौर में अनाउंसमेंट हुआ कि सब में बड़ा जो झूठ बोलेगा उसको जो है क्या मालूम है इनाम मिलेगा। तो सबकी बारी हो गई, तो सबके जब बड़ा झूठ नहीं साबित हुआ तो बीरबल जब आए तो बीरबल ने कहा कि मैं जब अभी आ रहा था एक झाड़ के नीचे 4 औरतें खामोश बैठी हुई थी। अकबर ने तालियां बजाई और कहा कि जो है ले जा बेटा प्राइज तेरा है। मर्द जो है औरत जो है किसकी फसली से पैदा हुई है? आदम की पेड़ी फसली से पैदा हुई है। इसीलिए शायर ने कहा कि आदम न खाते गंदम का दाना, पैदा ना होता ये चिल्लर खजाना। तो कम टू द टॉपिक जी, कुछ चीज़ें सुननी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि जो क्लास आप क्लास में भी पढ़ाते हैं तो किसी भी क्लास में जाइए, आप अगर बीइंग ए टीचर आप वर्क करना है तो आप पूरे जो 45 मिनट्स जो है बच्चों के पीछे सिलेबस पर जो क्या मालूम है ध्यान देने से बेहतर है कि आप 15 मिनट्स 20 मिनट्स ही पढ़ाएं। 20 मिनट्स जो है ऐसी बहुत सारी चीज़ें बच्चों को समझाएं जिससे आपको ये फील हो कि बेस्ट टीचर आपकी हैं, आपको गले लगा लें। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जो क्या मालूम डेवलपमेंट आस्पेक्ट में, तो यहाँ पर सोशल, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव एंड सोशल, ये 4 चीज़ें देखना है। अभी फॉर एग्जाम्पल इन्फेंसी पीरियड आप देख रहे हैं, कौन सा पीरियड देख रहे हैं? इन्फेंसी पीरियड है। तो ये बच्चे के इन्फेंसी पीरियड के अंदर कौन सी चीज़ें डेवलप होती हैं वो देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा आपको, बच्चा पैदा हुआ 2 किलो का है। कितने किलो का है? डेंजर जोन में रहते हैं ऐसे बच्चे, बहुत डेंजर जोन। तो 2 किलो का है, 3 किलो का है बच्चा। मैं आपको एक क्वेश्चन सिंपल पूछूंगा, 6 महीने के बाद क्या होता बच्चे का हाल? कितने किलो का रहता बच्चा? कौन सवाल दो बोले पीछे से? हाँ, एक अप्रोक्सीमेटली रेंज है, इट्स डबल देन द बर्थ। क्या होगा? डबल होगा। एक्चुअली बहुत सारे इनने 3 मंथ्स में लिखा है। तो क्या होगा? जैसे ही बच्चे का वेट क्या होगा? इंक्रीज होगा, डबल होगा। क्या होगा? डबल होगा। फिर ऐसे ही 1 ईयर हुआ तो उससे फिर 4 गुना बढ़ा। तो ये जो है क्या मालूम है, हम क्या देख रहे हैं? कौन सा डेवलपमेंट देख रहे हैं? यहाँ पे फिजिकल देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? फिजिकल। हार्मोनल डेवलपमेंट है। बच्चा जब देखो शुरू में रहता तो रहता, थोड़ा पैदा होने के बाद यहाँ करे चुप हो जाता, लेकिन बाद में जैसे जैसे उसको मालूम होता रहता, हाथ मारा पैर मारा, बहुत सारे डेवलपमेंट आए। ये मोटर स्किल भी फिजिकल में आता है। उसके साथ आज जो है हार्मोनल डेवलपमेंट जैसे जैसे चीज़ें शुरू होगी तो बहुत सारी चीज़ें पहले शुरू में जो है बहुत सारे जो है माएँ शिकायत करती हैं, बच्चा दूध ही नहीं पी रहा मेरा, वो नहीं पी रहा, डॉक्टर पास लोग परेशान हुए होते हैं। अभी उसके अंदर जो है वो क्वालिटी डेवलप होना होता है। जब क्वालिटी डेवलप होते हैं ऑटोमेटिकली आपको खींच कर बोलेगा कि मम्मा दूध पिलाओ। ये चीज़ें जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। साइकोलॉजी कैसे पढ़ना है, तो ये बायोलॉजिकल आस्पेक्ट, हार्मोनल डेवलपमेंट इस तरह होता है। इसके बाद जो हम देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। शुरू में बच्चा आया, समझिए आप पैदा हुआ है, दुनिया देखी है उसने, चुप पड़ा रहता हूँ, आँख खोले तो आँख बंद रहते हैं। जैसे वो आँख खोला समझ जाना कि जो क्या मालूम है आपसे जो क्या मालूम कुछ ना कुछ होगा। माँ को देख कर है अपने करीब जो साथी रहते हैं वो लोगों को पहचानना शुरू करेगा। उनकी गैर मौजूदगी में क्या करेगा? वो रोना शुरू करेगा, जो है चीखना शुरू करेगा। ऐसे जैसे उनको देखेगा मुस्कुराना, उनको स्माइल पास करना, ये देखो असरा बोलते हैं। तो क्या है ये इसका जो है क्या मालूम है कॉग्निशन भी काम कर रहा है। ये चीज़ें बहुत सारी हैं, माँ को देखकर पहचान रहा है।
चीज़ों गैर मौजूदगी में मौजूदगी का एहसास, कहाँ तक इसने सेंसरी मोटार स्टेज में कहा था, इससे बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट होगी। इसके साथ जो है हम जैसे कि जो है इसमें आते हैं सोशल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं। लास्ट स्टेज में बच्चा अपने फैमिली मेम्बर से जो है पैदाइश से जो है घुल मिल शुरू होगा, जैसे जो है लास्ट एडोलेसेंट तक आएगा, ग्रोइंग एज में होगा, फर्स्ट में दोस्तों के साथ करेगा, गैंग एज होगा, ये अलग अलग चीज़ें जो पढ़ना है ये पढ़ते हैं। फिर इस इन्फेंसी पीरियड में ये चीज़ें लेकर या हम कहेंगे अर्ली चाइल्डहुड में है तो ये अलग अलग चीज़ें यहाँ पर पढ़ना है। अब ये पढ़ने के साथ ही हम देख रहे हैं फर्स्ट स्टेज के अंदर जो ये चीज़ें देखें, उसके बाद वो कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चे की जो है तालीम को मुतासिर करती हैं। यहाँ पर देखिए आपका सिलेबस जैसे ही आप ओपन करेंगे साइकोलॉजी का, यहाँ पर वो वही चीज़ें दिया गया है। साइकोलॉजी का जो सिलेबस है आपका उसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यहाँ है, रिलेशनशिप विद लर्निंग, कॉन्सेप्ट या नशोनुमा का नजरिया, ये क्या कहेंगे, मैं सिंपल डेवलपमेंट को ये कहूँगा कि फ्रॉम डिपेंडेंसी टू इंडिपेंडेंस, द प्रोसेस ऑफ डिपेंडेंसी टू इंडिपेंडेंसी, यानी बच्चा जब पैदा होता है तो डिपेंड होता है। हम क्या करते हैं, जरा ऐसा लो ऐसा लो, हमारे पास अभी गर्दन नहीं बैठी, टेप पट्टी जरा अच्छा ले, बड़े लोग बोलते हैं कभी देखा मैं, तो गर्दन बैठना नहीं है, उसका जो एक सेल्फ कंट्रोल जो है, जो मोटार स्किल जो कंट्रोल है, जो मसल्स कंट्रोल है, अभी वो बच्चे का नहीं आता, इसलिए उसकी जो है गर्दन जो है इसके कंट्रोल में नहीं होती है। क्या नहीं होती, अभी उसके कंट्रोल में नहीं होती, वो गर्दन बैठी वो नहीं, वो बैठे दबाने कौन तो भी फिर ऐसा हुआ है गाँव में, गर्दन नहीं बैठी हुई तो कमी डब्बा को छोड़े गए थे गर्दन, तो ऐसे भी ऐसे होते हैं। बैठने का मतलब ये उसको कंट्रोल नहीं आया, अभी क्या नहीं आया उसके ऊपर, कंट्रोल नहीं आया, वो है। अब तुम्हें नहीं बोलना देखो जाकर फिर घर में आज के बाद बोलेंगे गर्दन नहीं बैठी, नहीं बोलना, अभी कंट्रोल नहीं आया उसके ऊपर, बोलना क्या नहीं हुआ है, कंट्रोल नहीं आया। कंट्रोल आते ही है बच्चा देखते हैं आप अभी पलटी नहीं मार रहा, जल्दी खतना करो, ऐसा बोलते हैं, आपको भी सुनेंगे। तो ये जो है क्या मालूम है, पलटी नहीं है वो, उसके अंदर अभी वो स्किल्स डेवलप नहीं है, इधर से उधर टर्न होने के क्या है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है, वो चीज़ है। ऐसा देखना साइकोलॉजी को, समझ में तो समझ में आएगा आपको लर्निंग से क्या रिलेशन है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के अलग अलग प्रिंसिपल हैं। डेवलपमेंट अकर्ड ऑलवेज, इट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस। उससे पहले ग्रोथ है, ग्रोथ कहेंगे हम सिंपल जो है क्वांटिटी, जितने भी चेंजेस आते हैं हमारे पास वो क्या है, ग्रोथ है, मकदारी तब्दीलियाँ। मिसाल के तौर पर जो है जब एक बच्चा पैदा हुआ है, मुश्किल से 2.5 फीट 2 फीट रहे, बहुत होता भी नहीं रहता, 1.5 फीट समझो वैसे पर सुपर हुआ है, तो जो है क्या मालूम, छोटा बच्चा होता है, बड़ा होकर जो है इतना बड़ा बच्चा होता है। ये क्या है, ये पूरी चीज़ें मेरे क्वांटिटी चेंजेस हैं। आई कांट एक्सपेक्ट दैट आई शैल बी सम मोर, जो है क्या मालूम है, डेवलपमेंट मेरे अंदर होगा, मैं जो आते आते जो है छत को छूना शुरू करूँगा, ऐसा नहीं कर सकता है। अब मेरा एक कांस्टेंट है, यहाँ पे आ गया मैं, मेरा ग्रोथ रुक गया। एक चीज़ होती है मोटा होऊंगा, दुबला होऊंगा, दुबले होने की दुआ कीजिए, तो ये जो चीज़ें हैं हो सकते हैं इतनी ही चीज़ें होंगी मेरे अंदर, मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी, बिकॉज अब एंड होगा। मैं हाथ जो है क्या मालूम है, इतने रखा हूँ मैं ऐसा करा तो उधर जाना, ऐसा करे तो उधर आना, इतने बड़े हाथ नहीं होंगे, बिकॉज ग्रोथ जो है टर्मिनल होता है, ये ग्रोथ है हमारा। क्वांटिटी चेंजेस ऑलवेज जो है क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे, एंड द बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी चेंजेस डेवलपमेंट। समझ में है, डेवलपमेंट माँ है, उसका एक बच्चा क्या है, ग्रोथ है, समझो आप, सिंपल है, समझ में है। तो ये चीज़ें इस तरह समझना है सिंपली। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, समझ में आया। ग्रोथ बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेंजेस में जो है, डेवलपमेंट बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेंजेस, बट ओनली ग्रोथ बोलती है हमारे पास, क्या करेंगे, टर्मिनल पे आ जाएंगे, एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। अब यहाँ पर जो है डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, माँ की कोख से लेकर इस पर मोवम का मिलना, जोड़ियाँ बनना, ज़ैगोट्स बनना, इसके बाद गोश्त का लुथड़ा बनना, ये बहुत सारी चीज़ें होना, सर बनना, पैर बनना, धड़ बनना, पूरी चीज़ें जो है उससे लेकर इन 9 महीने के बाद जो है दुनिया में जो है कदम रखने तक से लेकर कब्र के अंदर जाने तक भी जो है ये पूरा क्या है, डेवलपमेंट। ये क्या है, डेवलपमेंट है। समझ में आया नहीं, डेवलपमेंट बोलते ही अब जाकर डेवलपमेंट बोलते ही जो है क्या मालूम है, कन्फ्यूजन नहीं होना घर में। इट्स हेल्पफुल, आवाज़ कम आ रही मुझे ज़रा, हाँ जी। तो ये चीज़ें जो है क्या मालूम है, ज़रा आपकी आवाज़ आ रही है तो मेरी भी आवाज़ बढ़ती रहती है, वजह कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह और फिर 2-3 से जो है मैं कंडक्ट करूँगा, और इंशाल्लाह 1-2 से 3 दिन में और एक बड़ी गुड न्यूज़ भी देना है। गुलबर्गा के जो रहने वाले एक्सपीरियंट हैं उनको गुड न्यूज़ है, आप मत पूछिए क्या है बोलकर मैं दे दूँगा, तो मेरे चैनल के जरिए दूँगा मैं। यहाँ पे देखिए वही मैंने जिन पे आज बताया, कोलबर्ग इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट, यानी जो विरासत
विरासत बोलती है हमारे पास जो है आज जो है लफड़े विरासत के है नहीं। अब्बा की जायदाद में मुझे इतना मिला था, इतना नहीं मिला, इतना ये मिला, इन्हों मारे, बड़े भैया मारे, छोटे भैया मारे, वो जायदाद नहीं बोल रहा हूँ मैं। ऑलरेडी हमारे माँ बाप से दूसरी अलग जायदाद भी हमें मिली है, बिकॉज हमें इतना हो तो मुझे मेरे माँ बाप से मिला है। छोटे जो खानदान के लोग रहते हैं, गिटे गिटे खानदान में पूरे, दूसरे खानदान में जो लंबे लंबे से रहते हैं, वो क्या है, या कोई मीडियम रहते हैं, क्या है, ये हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस है। क्वालिटीज रहते हैं कुछ, आए उनके घर में पूरे डरकू की चेंज छोड़ो आई नहीं ना, पूरे काले चाहिए, आई ना ना उनकी पूरे नाकी जैसा है, चाइना से जैसा दिखता, आई नहीं ना उन्होंने, मैं सब बोल रहा हूँ मैं, आई नहीं ना उनके घर में पूरे काले चाहिए, नहीं पूरा कैसा पैदा है कि ऐसे अलग अलग होते हैं, हेरिडिटरी नहीं। हमारे मम्मी के भी बाल बड़े थे, मेरे भी बड़े हैं, ये क्या है, ये पूरी जो है क्या मालूम है, हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस है। अब उसके बाद आते हैं एनवायरनमेंट पे, नको ना वो वहाँ लिए तुम्हें घर पीछे कैसा है देखे नहीं, तुम बोलते क्या है, बोले तो पूरा गंदा खराब एरिया, पीने वाले बेवड़े, गांजा पीने वाले, बोलते गालियाँ देने वाले हैं, अल्लाह ऐसा है मैं निकालता हूँ, वहाँ से घर खाली करता हूँ, बिकॉज एनवायरनमेंट। तो यही बच्चे का पढ़ना है, साइकोलॉजी जो है ऐसे पढ़ने का है। आप पूछेंगे तुम इतना बोल रहे, मुझे बहुत आसान फील हो रहा, क्वेश्चन देखते मेरे पसीने छूट रहे हैं, क्या है, उसका भी इलाज मेरे पास टैबलेट्स हैं। वो क्या है टैबलेट बोले तो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, क्या करना है, मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो आप, डेफिनेटली जो है क्या मालूम है, आपके अंदर जो फियर की जो बीमारी है वो चली जाएगी, बिल्कुल चली जाती। आप जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, जितने होते उतने सॉल्व करना है। आपकी सहेलियों से भी बात करें, एग्जाम तक जो है साइकोलॉजी में बात करना। आइए देखो ना बच्चा, नहीं जी अर्ली चाइल्डहुड में होगा बोला उन्हें, ये बेटा इधर बोलते क्या है उम्र तुम्हारी, बोले तो हम आंटी 6 साल, ऐसा अर्ली चाइल्डहुड है, ऐसे बात करो। थोड़े दिन के लिए जो है आपके अंदर जो है आनी चाहिए, वो जो है आपका पैशन होना चाहिए, आपके अंदर जो चीज़ जो है ऑटोमेटिकली जनरेट होनी चाहिए, तभी आप वो जो क्या मालूम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, अलग अलग जो लोग होते हैं, उनको जो है क्या मालूम, जब इंटरव्यू से पहले उनके अंदर एक क्वालिटी पैदा करने की कोशिश की जाती है कि वो IAS ऑफिसर बने। तो ये चीज़ें जो है ट्रेनिंग होती है। तो इसी तरह आप भी जो टीचर्स बनने से पहले टीचर वाली फीलिंग होना, डेमो देने जाते हैं, क्या क्या चीज़ ढूंढते रहते हैं, डस्टर जो है, आप यकीन मानो एक डेमो लेने मैं भी गया था, सामने बैठे हुआ था मैं, एक मोहतरमा डस्टर जो अपने हाथ में पकड़ी है, और जो ये हाथ में चौक है, उन्होंने जो है रब करने के बाद से डस्टर ढूंढे, 3 मिनट ढूंढे उन्होंने डस्टर। मैं शॉक हो गया, मैंने कहा कि मैडम अपने आप को इतना भी जो है मालूम है, ये मत कीजिए। होता है ऐसा, होता है, हमारे साथ भी होता है। कभी कभी जो बाइक की चाबी ढूंढते ढूंढते 10 मिनट निकल जाते हैं, मालूम होता है कि पीछे की जेब में बाइक की चाबी। तो ये जो क्या मालूम है चीज़ें होती हैं। तो हेरिडिटी इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस है, सोशलाइजेशन प्रोसेस है, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, समाजी दुनिया और बच्चे किस तरह हैं। इसी तरह से जिम पैजे, कोलबर्ग, मैगुटस्काई, कंस्ट्रक्शन क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, वही चीज़ें मैंने जो आपको बताई अभी। उसके कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी बच्चा मरकज़ तालीम बोले, बच्चा मरकज़ तालीम बोलते हैं। हमारे पास क्या होता, चाइल्ड को, बच्चे को ये सब पूरे जने सब बैठना, बीच में बिठा को बैठना, क्या सेंटर में बिठा बच्चे को पढ़ाओ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर है चाइल्ड शुड बी सेंटर ऑफ एजुकेशन। ये जो मैंने बताया है स्टेजेस, ये डेवलपमेंट स्टेजेस को रिलेटेड करके ही बच्चे को जो है पढ़ाना है। तो यही जो है क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम देखते हैं जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन है कि प्रोग्रेसिव, कभी हम पूछते हैं प्रोग्रेसिव कार्ड क्या है, पूछते हैं प्रोग्रेस कार्ड बोल करा देते हैं, टीचर देते नहीं रहते हैं, उसके अंदर आधे से ज़्यादा का 90% झूठी से भी कोई जाता है, गुड 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 गुड। मैंने बहुत सारे स्कूल ऐसे टॉप स्कूल के बच्चों के मार्क्स कार्ड भी देखे, गुड गुड बोलने के बाद मैं बोला आई वांट टू चेक दैट, बोला चीज़ें जो है आपके अंदर चेक करेंगे। तो आज जो है वो चली हुई कारोबार है, तो उसके अंदर बताना, कारोबारी को तो कारोबार चलाना रहता है, तो पूरे गुड गुड ही डालें। स्पोर्ट्स करेंगे तो वो भी गुड करते, नहीं करेंगे तो वो भी गुड, सब भी गुड। तो ये डालने का क्या है, हेल्थ बोल के डालें, गुड बने, बच्चा 6 महीने बीमार है, तो ये चीज़ें कॉलम में ऐसे होते हैं। तो ये चीज़ें बोलना क्या है। तो यहाँ पे भी जो है क्या मालूम है, आपको चीज़ें देखनी है सोशलाइजेशन बिहेवियर के अंदर। ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन में एजुकेशन को किस तरह प्रोग्रेसिव बनाया जा सकता है, उसका कॉन्सेप्ट है। या प्रोग्रेसिव एजुकेशन का थीम है, तो आपको कौन सी चीज़ें उसके अंदर लानी चाहिए।
एजुकेशन प्रोसेस के लिए आपको कौन सी चीज़ें लानी चाहिए, वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड, उसके बाद क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, वही मैंने कहा मल्टी डायमेंशन हमारा रोटी या कसी रुकनी जहानत होवर्ड गार्डनर का नजरिया है, जिसने कहा था कि 8-fold इंटेलिजेंस किसका है जी, 8-fold इंटेलिजेंस का है होवर्ड गार्डनर। ऐसा नहीं पूछता नहीं हु इन्वेंटेड हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ 8-fold, नहीं पूछता, ऐसा पूछता है। रोहन इज मच मोर इंटरेस्टेड इन द क्रिकेट एंड इज नोन एज द वेल नोन क्रिकेट प्लेयर इन द इंडिया। उनको पूछता हूँ व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इट इज, पूछता हूँ। दिस थीम इज रिलेटेड टू द इंटेलिजेंस। एक जो है रोहन एक बेहतरीन जो है क्या मालूम है खिलाड़ी है, वो जो है कुलहीन सतह पर या कौमी नेशनल लेवल गेम्स में जो है बहुत सारे जो है इनाम जीत चुका है। तो पूछा नहीं समझो, हाँ बोलेंगे ये जो है जहानत के किस जुमरे से ताल्लुक रखता है, हम बोलेंगे जहानत इसमें क्या है, बोलेंगे तो वहाँ पर ढूंढना है होवर्ड गार्डनर को ढूंढना है, इसको ढूंढना है होवर्ड गार्डनर को ढूंढना है। इसी तरह जो है क्या मालूम है जहानत के अलग अलग जो है क्या मालूम है जहानत अलग अलग तरह की होती है। यहाँ पर जो कहेंगे कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस अलग अलग तरह के, तो वो स्टेजेस याद रखना है, आपको याद होंगे। उसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, इंशाल्लाह आपको वो भी जो है दूंगा मैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बनाए उर्दू मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। उसके बाद आपको दिया हुआ है इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन आता ही आता है। जिन्स बना है समाजी तामीर जिसको कहते हैं, या जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। अब जेंडर है क्लासरूम में आपको जो है 2 जेंडर हैं, एक है फीमेल है, मेल है, गर्ल चाइल्ड बॉय है। अब दोनों में जो कंपटीशन लगाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, आप समझिए जेंडर कोई गर्ल्स लड़कियां अच्छा पढ़ रहे हैं आजकल, जो है वैसा क्या भी नहीं है, कोटेज नहीं पढ़ रहे, ये मैं नहीं पूरा पूरी दुनिया बोल रही। तो यहाँ पर देखिए अब लड़कियां पढ़ रहे हैं तो हम जो है बोलना क्या पढ़ रहे हैं जी बच्चे हैं, पढ़ते हैं तुम क्या रहे तुम बेकार, तुम कब करते हैं, तुम कब लाते हैं प्राइस, बोलते हैं बच्चों में स्कूल भी रहता नहीं, उसके अंदर का जाग जाता हूँ। या नहीं तो डिफरेंट हो रहा, यहाँ पर जो क्या मालूम है जिनसी तफरीक पैदा हो रही, तो वैसे टाइम पे इक्वालिटी कैसे लाना है, यही पढ़ाने का क्लासरूम का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। इसी तरह इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी है, जिसको इनफरादी इख्तिलाफात कहते हैं। व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस? द डिफरेंसेस विच डिफर वन पर्सन फ्रॉम अनदर पर्सन इज कॉल्ड इंडिविजुअल। 2 लोग हैं, दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, तो वो चीज़ें इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आप देखिए पीछे हमारे मेरे एक दोस्त बैठे हुए हैं, वो हैं और मैं हूँ। अब बोलिए दोनों के बीच में डिफरेंस है क्या, एक जैसे दिख रहे हैं? सभी तरह डिफरेंसेस, फिजिकली डिफरेंसेस, दोनों जो थोड़ा दुबले होंगे, मैं मोटा होऊंगा, या उनका जो नाम अलग है मेरा नाम अलग है, फिर उन्होंने जो शेख होंगे मैं सैयद दूंगा, यानी तो मैं सैयद शेख, अलग अलग कुछ भी सभी तरह के डिफरेंसेस। उन्होंने कन्नड़ा नहीं बोल सकते, मैं बोलता हूँ, तो उन्होंने मैं जो इंग्लिश नहीं बोलता हूँ वो बोलते होंगे, ये अलग अलग तरह के डिफरेंसेस हैं पूरे, ये इंडिविजुअल डिफरेंस है। लेकिन क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे आते हैं ये भी देखना है। ऑन द बेस ऑफ इंटेलिजेंस है, ऑन द बेस ऑफ लर्निंग है, ये अलग अलग तरह के इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने में। हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते अलग है। यहाँ पर फेशियल देखिए, उनका भी फेस अलग है, मेरा अलग है, ये पूरी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पढ़ना है, ये 4 खानों में डालकर। कौन से 4 खाने? फिजिकल, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल, ये चारों खानों में डालकर क्या देखना है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखना है। सिंपल, समझ में आ रहा नहीं सिलेबस अब? यहाँ आने पर फिर घर पे जाकर भूलने के आपको छोड़ता हूँ जल्दी, फिर पकाने का वगैरह होगा। नहीं कोई सोच रहे हैं तो समझ सोचो, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। उसके बाद असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। एक असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोले तो क्या? इक्तिसाबी जो है क्या मालूम है क्या है? जांच कहेंगे। बच्चा सीखा हुआ है तो उसकी जांच करना है, और एक बच्चे को सिखाने के लिए जांच करना है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इसके अंदर फिर हम सीसी पे आते हैं, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मुसलसल जामे कदर पैमाई है। उसके अंदर आते हैं हमारे पास एफए एंड एसए, सॉरी एफए है और एक एसए है। एफए होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये चलते रहता है क्वालिटेटिव चेंजेस लाने के लिए, और एक ऐसे जो होता है वो होता है समेटिव इवैल्यूएशन, इसको बोलते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये? रिजल्ट ओरिएंटेड। क्लासरूम में पास करने के लिए, तो एक बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने के लिए क्या करते हैं? समेटिव इवैल्यूएशन देते हैं। इसी तरह जो है मुसलसल जामे कदर पैमाई का कॉन्सेप्ट इसी के अंदर शामिल है। ये दोनों चीज़ें मिलाकर मुसलसल जामे कदर पैमाई का
कॉन्सेप्ट रुझान आता है। तो ये समेटिव इवैल्यूएशन ये है। उसके साथ बहुत सारे अलग अलग जो इवैल्यूएशन टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स हैं साइकोलॉजी के अंदर। क्लिनिकल अप्रोच बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये अलग अलग फिर जो है साइको जो क्या मालूम एनालिसिस है, ये अलग अलग जो है क्या मालूम मेथड यूज़ होते हैं। आपके कोर सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग मेथड्स यूज़ होते हैं। तो ये चीज़ें जो क्या रिलेट करती हैं साइकोलॉजी से। उसके बाद आते हैं हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। कौन सा एजुकेशन है? इंक्लूसिव एजुकेशन। इसको बोलते हैं शमूलियती तालीम। हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते ही एक जो है सेपरेट किसी को वो हैंडीकैप को फिजिकली जो है क्या मालूम है डिसेबल कहेंगे, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन है, इनको पढ़ाना नहीं है। यहाँ पर सभी को देखना है, सभी को, ऑल। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो जो है क्या मालूम है उसको भी देखना है। गिफ्टेड चिल्ड्रन जिसको कहते हैं उसको भी देखना है। रिटार्ड मॉरन जिसको कहेंगे हम जो है वो चिल्ड्रन को भी देखना है। हमारे पास क्या होता है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा बच्चा, ज़रा थोड़ा इंटेलिजेंट दिखने लगा, टीचर परेशान होने कहने लगा, टीचर परेशान एक चुप दीवाने कहा करता है, उनको बिठा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, तो एक दीवाने काम बेटा बिठा, तेरे क्या मालूम बिठा देते हैं। लेकिन वो बच्चा जो बोल रहा है उसको भी आपको उसकी ज़रूरत पूरी करनी है। यहाँ ज़रूरतों के हिसाब से है। इसी तरह सोशली मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, फिजिकली रिटार्डेड चिल्ड्रन जिसको कहेंगे, ये अलग अलग कैटेगरी है। मेंटली रिटार्डेड मॉडर्न है, कम जहनत है, कुंजान है, ये तरह के जो है बच्चे जो आते हैं उनको अलग पढ़ाना है। फिर इसी तरह जो है फिजिकली है, कोई जिसकी आँख नहीं है, अंधा है, या हम कहेंगे जो है नाबीना जिसको कहते हैं, नाबीना बच्चे हैं, माजूर बच्चे हैं, इसके लेटार हड्डियों की जोड़ बेजोड़ बनावट है, ये जो चीज़ें ये बच्चों को फिजिकल जो होते हैं उनको पढ़ाना है। सोशली रिटार्डेड चिल्ड्रन जिसको कहते हैं, समाजी तौर पर जैसे जो है पिक पॉकेटर्स हैं। कौन जी मैडम मेरा पर्स मारा क्या करना बोलकर, तो पिक पॉकेटर्स हैं। इसी तरह जो है ब्रॉथल जो कहेंगे, ये जहाँ पे जो है क्या मालूम है अलग अलग जो होते हैं वहाँ से बच्चे लाते हैं, या एडिक्ट है, अल्कोहल एडिक्ट चिल्ड्रन है, उनको भी पढ़ाना है। उनके लिए भी सेपरेट रिमाउंड रूम्स होते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर रखा गया है। गिफ्टेड चिल्ड्रन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लर्नर्स हैं, उनको भी जो है पढ़ाना है। वो चीज़ें भी यहाँ पर उनको आते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर IQ। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास है एड्रेसिंग द लर्नर्स फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड। डाइवर्स बैकग्राउंड बोले तो यहाँ पर जो है वो डाइवर्स अलग, ये डाइवर्स है, ओके, डाइवर्स अलग वो अलग है। ये डाइवर्स यानी मुतफर्रिक अलग अलग से। फॉर एग्जांपल जो है कोई हाई कैटेगरी से आता है, कोई जो है हाई क्लास बच्चा है, लोग मिडिल क्लास है, लो क्लास है, उनके लेना है। कोई जो है मुस्लिम घर से आता है, कोई हिंदू घर से आता है, कोई जैन है, कोई बुद्धिस्ट है, कोई कन्नड़ मीडियम बोलने वाले घर से आता है, कोई इंग्लिश मीडियम बोलने वाले आता है, कोई जो उर्दू बोलने वाले घर से आता है। मदर टंग अलग अलग होती है। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये बेस पर पढ़ाना है, इसीलिए इसको डाइवर्स क्लासरूम बोलते हैं। क्या होता है? डाइवर्स क्लासरूम पढ़ाना है। कॉन्सेप्ट ऑफ, उसके बाद है आपको एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज। उसके बाद लर्निंग डिफिकल्टीज अलग अलग हैं। याद रखो ये चारों में से क्वेश्चन आता चाहता 500-500 रुपये की शर्त ना, कुछ ज़्यादा से लगेंगे। तो ये क्या है? डिस्लैक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया। क्या है? डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया एंड और एक है डिस्लैक्सिया। तो ये चीज़ें आती हैं। डिस्लैक्सिया जो पढ़ने से मुताल्लिक माजूरी जिसको कहते हैं, डिस्ग्राफिया लिखने से मुताल्लिक माजूरी है, मैथमेटिकल माजूरी जिसको कहते हैं डिस्कैल्कुलिया। फिक्स क्वेश्चन ये, कल सूरज नहीं निकलेगा बोले तभी थोड़ा याद करो, अल्लाह कहीं मेहरबान नहीं है बोल सकते हैं, लेकिन जो है क्या मालूम है ये क्वेश्चन भी आता है, वैसे क्या भी नहीं है। इंशाल्लाह ज़रूर ये क्वेश्चन आएगा, इंशाल्लाह ये क्वेश्चन जो है ज़रूर आएगा। इसमें से एक इच आउट समझो, क्वेश्चन आउट हुआ पेपर का, क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन आउट हुआ, वो ये है डिस्लैक्सिया, डिस्ग्राफिया, जो है कैल्कुलिया, तीनों में से एक जो है पूछता है आपको डालना है। उसके बाद आपको जो है एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव चिल्ड्रन, मैंने जो कहा। उसके बाद जो है नेक्स्ट है लर्निंग एंड पेडागोजी, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, बच्चे किस तरह सोचते हैं या सीखते हैं वो है। एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव द सक्सेस इन द स्कूल परफॉर्मेंस, बच्चे जो स्कूल के परफॉर्मेंस में क्यों जो है क्या मालूम नाकाम रहते हैं, ये चीज़ें उसके अंदर समझना है। तो ये अलग अलग चीज़ें सिलसिलावार वहाँ पर होती हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे किस तरह सोचते हैं, किस तरह सोचते हैं, बच्चों के सिली क्वेश्चन रहते नहीं रहते। मिस तुम्हें बोले थे कल स्टोरी में, वो जो है अलिफ लैला की कहानी सुनाए थे, वहाँ अलिफ लैला उड़ते हुए गया बोले, मैडम वो आगे क्या था, फिर पूछते हैं बच्चे। मिस आप बोले कि जो है क्या मालूम है वो ये इसका जो जादूगर वो ये करते हैं, सब पानी फेंकते हैं, आग लगती, बोले वो कौन सा एसिड है, बोले थे मैडम वो क्या करता, कैसा आता, बताना चाह, मैडम नहीं मालूम है तो इनको एसिड शुरू होते हैं, परेशानी में क्या करना होकर। और एक टेक्निक बोलो मैं आपको, टीचिंग में कभी भी एक चीज़ याद रखिए, जो बच्चा क्वेश्चन पूछता है अगर आपको नहीं आता है
तो पसीना पसीना होकर जो है हाँ मिस आराम को बुला करके नहीं जाना, उसका एक मेथड है। क्या है देखो, गुड नाइस क्वेश्चन फ्रॉम द अदनान बोलना। क्या बोलना है? नाइस क्वेश्चन बेटा, यू हैव डन मार्वेलस, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, लेकिन इसका कंप्लीट आंसर आपको कल मिलेगा, थैंक यू बाय बोल के जाना। आप अपने अंदर आप गिल्टी भी नहीं फील करना, कल आकर बोलना कहाँ है अदनान मेरा बेटा, बोलते बच्चा पूछ सकता हूँ मिस साथी मेरे कुछ पूछे बोलता हूँ। तो ऐसा आपका बिहेवियर रहना, नहीं मालूम जी कैसा की क्या नहीं की, ऐसा नहीं की, आपकी टीचिंग का प्रोफेशन नहीं है, ठीक है? नहीं तो चुप एक रुको जरा मैं आ रहा हूँ या फिर गूगल बाबा पे देखकर ये काम कतई नहीं करना है। तो बच्चे किस तरह फील होते हैं, तो उनके अंदर दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं। बच्चे वाई चिल्ड्रन फील टू अचीव द एकेडमिक सक्सेस, दो तरह की जिम्मेदारियां हैं, एक है जो क्या मालूम पर्सनल और एक एनवायरमेंटल। बच्चे फेल होने के पीछे पर्सनल रीजन भी है, एनवायरमेंटल। पर्सनल रीजन क्या है, देखो क्या है मालूम, बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है शुरू से, नहीं बोल रहा हूँ, और एक एनवायरमेंट है, घर का माहौल भी है, मदरसे का माहौल है, पीर ग्रुप है। घर का माहौल है, सुबह उठते ही शाम उठते ही है पापा जो है क्या मालूम है अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कलमे पढ़ रहे हैं, मम्मा के साथ जो है रोजाना WWF जो है हो रही है, मारा मारी हो रही, तो बच्चा वैसे माहौल में नहीं पढ़ सकता। हम देखते रोना शुरू करता हूँ, है नहीं है बोलो, एकदम जो है एकदम डिप्रेशन में आ जाता है बच्चा, कहाँ पढ़ेगा उन्हें। मेरे पास एक जो है बच्ची को मैंने पूछा कि पापा अच्छे हैं क्या, मम्मा अच्छे हैं, बोले तो बच्ची बोली कि मेरे मम्मा अच्छे हैं, मुझे पापा क्यों अच्छे नहीं, बोले तो रोज मम्मी को पापा मारते हैं। अब इमेजिन नहीं करेंगे LKG की बच्ची है, कौन से स्कूल की बच्ची, कौन सी क्लास की है, LKG की बच्ची है। LKG की बच्ची से मैंने सवाल किया कि बेटा मम्मी अच्छे कि पापा अच्छे हैं, तो मम्मी अच्छे हैं बोल के बोली। अब मम्मी अच्छे हैं उसका रीज़न भी बताई बच्ची, पापा अच्छे नहीं है क्यों उसका रीज़न भी बताई। पापा रोजाना मम्मी को मारते हैं, बोले तुम क्या करते हैं, बोले तो हम लोग ठहर के दूर देखते रहते हैं, हम लोगों को मारते हैं, हम लोग नहीं बोले। ये फीलिंग अगर सेंस बच्चे का आती है तो आगे जाकर पढ़ने के टाइम पे भी वही बच्ची आकर क्या करती है मालूम है, अपने सहेलियों को सुनाती है, क्या हुआ, बोले तो मेरे मम्मी आए मारे थे, मम्मी रो रहे थे, ऐसा। ये जो क्या मालूम फिर उसके अंदर जो है डिप्रेशन या शुरू से जो है काहट पैदा होती है, तो तालीम की तरफ नहीं आते। इसी तरह जो है मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, माँ बाप अलग होते हैं, डाइवर्स केस होता है, माँ अलग, बच्चा 4 दिन उधर रहा, अम्मा के पास रहा, बाप के पास रहा, नानी के पास रहा, फिर नानी उन्होंने रख लिया, अम्मा काम कर दी, बहुत सारे अलग अलग जो है फैक्ट्स होते हैं। तो ऐसे माहौल में बच्चे की तालीम नहीं होती है, माँ बाप दोनों के चले गए हैं, देख रेख करने वाला नहीं है, तो नहीं होता, ये एनवायरमेंटल फैक्टर में। और उसके बाद भी जो है सब में जिम्मेदार जो है बच्चा फेल होने के हम भी हैं। हम बोले तो मैं ही पूरे टीचर्स हैं, हाँ बोले पूरी जिम्मेदारी मेरे पूरी डालती तो यहाँ पे हम भी हैं। टीचर्स भी अगर जो है सही रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं पाते हैं तो बच्चे फेल होते हैं। मदरसा भी जिम्मेदार है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल की बैठने की जगह है, आपको मस्त आपको टेबल्स दिए गए, बिठाए गए हैं, आप जो है आराम से बैठे हुए हैं। आपको जो है क्या मालूम है, मैं बोला जरा निकाले की टेबल डाल तो शतरंजी बोलती जो है आई नहीं ना, मैं निकल तो मेरा फोन आ रहा, हाँ आ रहा हूँ, मैं उधर से निकल जाता हूँ, जैसे 2 लोग चले गए। तो ये अलग अलग जो क्यों आता है, आने के पीछे यही रीज़न होता है कि जो है प्रॉपर अरेंजमेंट अगर स्कूल में नहीं रहता है तो वो भी होता है। स्कूल बिल्डिंग भी मैटर करती है सीखने में। रेलवे स्टेशन के बाजू है, मैडम जो क्या मालूम पढ़ा रहे A+B+होल बोलते जो मालूम है होल स्क्वायर बोलते पीछे बोलते आगे बोले तो अपना बच्चा जो है नहीं सीखता। पर्सनल इश्यूज भी आते हैं, क्या जो है चीज़ें जो कंट्रीब्यूट करते हैं लर्निंग को, उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें आते हैं। आपका जो है मोटिवेशन भी आता है, मोटिवेशन भी आता है, इंटरेस्ट है, इसी तरह मेमोरी भी है, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मेमोरी है, इंटरेस्ट है, डायरेक्ट इंटरेस्ट, इनडायरेक्ट इंटरेस्ट, इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। इसी तरह जो है हम कहेंगे कि अटेंशन जिसको बोलते हैं, और एक अटेंशन आप मुझे सुनते हैं, आपका अटेंशन है, इसके अंदर अटेंशन, डायरेक्ट अटेंशन, इनडायरेक्ट अटेंशन, और एक है हैबिचुअल अटेंशन। मैं हर बार बोलता हूँ, आपको मालूम है, ऑब्जर्व हटिए चिपके लिए इनडायरेक्ट अटेंशन है। क्या है ये? इनडायरेक्ट अटेंशन है। क्या है ये? इनडायरेक्ट अटेंशन। तो ऐसे ही जो क्या मालूम है, डायरेक्ट अटेंशन आप मुझे सुन रहे हैं। कुछ लोग होते हैं रेलवे ट्रैक के बाजू भी जो है ऐसे नींद लेते हैं जैसे घोड़े बेचकर यही सोए हुए हैं। क्या है ये? घोड़े बेचकर ये सोए हुए हैं। क्योंकि वो हैबिचुअल है। हम जाते ही जर्रा सो गए तो बोलती उठ कर जो जागना शुरू होते हैं, बिकॉज हम हैबिचुअल नहीं हैं। तो ये चीज़ें हम, जैसे आप हैबिचुअल नहीं थे, आप मुझे कहते थे मैं 10 बार बोलता किधर है वो देखता हूँ, आप झटके से हटे, इसका मतलब जो है आप हैबिचुअल नहीं है चीज़ों से। तो ये जो अटेंशन के अंदर आती है, अटेंशन भी कंट्रीब्यूट करता है लर्निंग को। ये बहुत सारी चीज़ें लर्निंग फैक्टर्स के अंदर आती हैं। लास्ट एंड जो फॉरमोस्ट चीज़ है इसके अंदर, चाइल्ड जो है एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर,
प्रॉब्लम सॉल्वर बच्चे जितने भी होते हैं जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर बच्चा व्हेन वाई क्यों ऐसा क्यों होता है कि वो क्या है कि बच्चे सोचते रहते हैं। आप छोटे आपके बच्चों को भी देखिए वहाँ वो क्रोकोडाइल पानी में था, ऐसा था कहीं को गया पानी में, क्या लाता वहाँ से, क्यों जाता उधर, ऐसे क्वेश्चंस बच्चा शुरू करने लगे कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर की तरह, क्योंकि साइंस है क्या मालूम है वाई व्हेन एंड हाउ ये सवालात की जवाब देती है साइंस, तो इसी का नाम साइंस है, सिस्टमेटिक स्टडी। तो बच्चों के यहाँ पर सवालात होते हैं तो बच्चा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर की तरह काम कर रहा है, समझ में आती है यही कॉन्सेप्ट साइंटिफिक। तो सिलेबस में कॉन्सेप्ट आपको इस तरह समझना है। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग इन द चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग द ये है थियरीज को आपको अलग अलग पढ़ना है। एरर्स एज ए सिग्निफिकेंट स्टेप टू द लर्निंग प्रोसेस, यानी जो गलतियां जो बोलते हैं गलतियां होती है मारिश मारने के बच्चे को, टीचर क्या करें गलती करते हैं बच्चे को मारना शुरू, लेकिन गलती क्या करती है, एरर्स आर द एक पॉजिटिव स्टेप है टुवर्ड्स लर्निंग। आप जो पीईटी फेल भी हुए तो जो क्या मालूम है फिर सुबह उठना, रिजल्ट आ गया, रात भर रोना, फुल रो कर जो क्या मालूम है सुबह उठकर बोलना कहाँ है मेरी किताबें, बोलना फिर उठकर जो पढ़ना शुरू करना। अल्लाह ताला सबको कामयाब करें दे। अब दिन में ऐसा हमको फेल होने की दुआ मांग रहे हैं, क्या बोलते हैं नहीं, हर बार जो ऑलवेज ये दुआ करूँगा कि आप पास हो। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू द योर विच थिंग रिलेटेड टू योर पॉजिटिवनेस। तो यहाँ पर स्टेप गलतियाँ हैं, गलतियाँ कोताहियाँ किस तरह जो है बच्चे को लर्निंग के अंदर जो है मदद करती हैं, वो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कॉग्निशन है, इमोशन है, उसके बाद जो है फहम या समझना है या अकल है, या हमारी जो सूझबूझ है या वकूफ़ी सलाहियत है जिसको कहेंगे वो है, और इमोशंस है। क्या है इमोशंस, इमोशन क्या है बोलो, जज्बात क्या है, रोना शुरू जज्बात है, फिर हास्य रोज जोर जोर से ऐसे जज्बात हैं, हौसलों को परवान चढ़ाना जज्बात है। देखिए जज्बात क्या है, हमारा जो है अपसेट ऑफ माइंड समझो, सिंपली क्या है भाई हमारी जो अनकॉन्शियस जो चीज़ हुई, जैसा जब जज्बात में आते हैं तो हम अपने आप को नहीं रखते, नहीं ना जज्बात में तुम्हारी बोली ना नाजिया का बुरा लगा क्या, नहीं रिपीट करते, बहुत ज़्यादा जज्बात में आपको जो गालियाँ दिया आज नहीं दिया गरीब, कॉग्निशन है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो जज्बात हमारी जो है क्या मालूम है अनकॉन्शियस बिहेवियर है, हम वहाँ पे कॉन्शियस हमारे नहीं काम करते, हमारी जो चीज़ें हमारी अकल काम नहीं करती, वो जज्बा है, वो अलग जज्बा अलग। फिर जज्बात जो है जहाँ पे हमारी अकल काम नहीं करती वहाँ पे, फॉर एग्जांपल इमोशंस, इसी तरह एक इमोशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि जो द ग्लैंड दैट इज हेल्पफुल फॉर द जो हम कहेंगे जो हंसना है, स्माइल, ये बनावटी स्माइल अलग है, मैं आपको कोई जोक बोला तो आपका हंसना अलग है, कोई जोक बोलते हैं तो वो हंसना अलग है। ये जो है जैसे मैंने कहा कि सरमुडवा के जो है राजा उजाला हो जाएगा, तो आपकी हंसी जो आई वो आपके अंदर है, तो ये एड्रेनल ग्लैंड जिसको बोलते हैं उसकी वजह से है। ये क्वेश्चन भी पूछा था सीटेट में। तो इस तरह के जो जज्बात किस तरह परवान करते हैं, कैसे आते हैं। और एक चीज़ बोलूँगा मैं, कुछ बच्चे जो दराम मारते जो है क्या मालूम है शुरू हो जाते हैं उनके, ये चीज़ क्या है, तो ये चीज़ ये है कि शुरू से उसको जो है क्या मालूम है समझ जाना कि शुरू से उसको जो है दबा दबा के रखा गया है, फ्रीली जो इसको एटमॉस्फेयर नहीं है, उन्हों मारे इन्हों मारे। बच्चा बैठा हुआ है आते जाते सट जो बोले नो मारा है, मैथ्स की मिसाइल मारे, सोशल की मिसाइल मारे, अब कन्नड़ा वाले आ रहे हैं उनको देखकर बच्चा बोलता अब भाई अब मैं भी अब भी गया बोलता हूँ क्या जी कन्नड़ा की देखते रहता हूँ, क्या करता हूँ आना से पहले स्मेल डाल बोल के चला जाता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, तो ये भी जज्बात की कॉम्बिनेशन किस तरह लर्निंग में आते हैं वो है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद मैं आता हूँ कोर्स सब्जेक्ट की तरफ। अगर आपको ये बोल नहीं हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है देखिए, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो जी 2-6 हमें 5 से 7 मिनट के अंदर जो है वाकुर दवाना ख़त्म कर दूँगा मैं इंशाल्लाह, मतलब ये सेशन ख़त्म कर दूँगा। एक पागल ने कहा दूसरे पागल से कि मैं दुनिया मिटा दूँगा, क्या कहा मैं दुनिया मिटा दूँगा, तो दूसरा पागल भी बड़ा चालाक निकला, उन्होंने कहा कि मैं रबर लेकर भाग जाऊँगा मैं जो है दुनिया मिटाने का रबर लेकर भाग जाऊँगा। तो ऐसे जो है हालात हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अगली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारी जो है कोर सब्जेक्ट के ऊपर। तो कोर सब्जेक्ट जैसे मैं सोशल साइंस से शुरू करूँगा, तो सोशल साइंस के लिए मैं ऑलरेडी कोर सब्जेक्ट बिगिनिंग ही मेरी कोर सब्जेक्ट पर थी, तो वही चीज़ें जो है मैं दोहराना नहीं चाहता। तो एक और एक चीज़ जो ट्रिक्स दे रहा हूँ कोर सब्जेक्ट के लिए, आप अपने ओन जो है क्या मालूम है
नोट्स बनाइए, अपने ओन क्वेश्चन फ्रेम कीजिए, यानी तो सीटेट वगैरह के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं वो फॉलो कीजिए, लास्ट ईयर के केटीटी के फॉलो कीजिए, आपको वहीं से क्वेश्चन आएंगे। लास्ट टाइम पे एशियाटिक सोसाइटी के बारे में क्वेश्चन आया था, 6 स्टैंडर्ड से था। इसी तरह से क्या मालूम है वुमेन्स रिफॉर्मर के बारे में था, वो भी जो 6 स्टैंडर्ड से क्वेश्चन था, रमाबाई वगैरह का, वो क्वेश्चन वहाँ पर आए थे। इससे पहले जो है क्या मालूम है हमारे पास जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो भी 6 स्टैंडर्ड में, 6 to 8 तक जो है क्या हम क्वेश्चन वहाँ पे थे, फूड एंड इट्स कंपोनेंट रिलेटेड क्वेश्चन थे। इसी तरह जो है क्या मालूम है दूसरे भी जो भी क्वेश्चन थे वो पूरे 6 to 8 तक ही थे। तो कोर सब्जेक्ट के लिए जो है आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग है, आपका जो है कोर सब्जेक्ट में जो है जो स्कोर होना है, याद रखिए टीटी पास करने के लिए कोर सब्जेक्ट का स्कोर कितना होना बोले तो मिनिमम जो है क्या मालूम है 46 रहना होगा, मैक्सिमम 50 कीजिए चल जाता। 46 यहाँ पर लाया आप, उसके साथ आप 46 यहाँ पर लाने के बाद आपके बच्चे जो है क्या मालूम है जो लाना है 46 बोले कितने बच्चे अभी 54 लेना है, कितने लेना है अभी 46 बोले कितने लेना है 44, कितने लेना है 44 लेना है। तो 44 आराम से 46 यहाँ पर लेना है आपको कोर सब्जेक्ट में, नहीं बोले तो भी बहुत आखिरी हुआ तो भी 40 तो एटलीस्ट जो है कोर सब्जेक्ट में आपका स्कोर रहना। अब लैंग्वेजेस में लैंग्वेज 1 26, 26 प्लस 40 प्लस साइकोलॉजी में जो है क्या मालूम है 18 से 22 आना, एटलीस्ट 18 मार्क्स तो क्या आना साइकोलॉजी में, कितने 18 मार्क्स। अब रहे लैंग्वेज 2, उसके अंदर जो है आपकी जो है एटलीस्ट जो है 20 रहना, कितने होते हैं देखो काउंट करो, पास हो गए क्या नहीं हुए आप, और पास हो गए या नहीं है 26 प्लस जो 66, उसके बाद जो है कितने हुए 90, देखो हुए नहीं हुए 60, ये जो क्या मालूम है 78, कितने हुए 90, 98 हुए नहीं हुए। तो अराउंड जो है क्या मालूम है आप 94 95 जो मार्क्स हैं आसानी से ले सकते हैं, ये रेंज आपकी होनी चाहिए। अब नहीं चलो 26 नहीं भी लिए इसमें एटलीस्ट जो है 24 मार्क्स को भी लेना, लैंग्वेज में कितने 21 मार्क्स भी लेना, या कोर सब्जेक्ट में 40 तो लेना है, साइकोलॉजी में 18 तो आना, लैंग्वेज 2 में जो है क्या मालूम है 20 तो आना, ये इसको रेंज होना है आपका, ये करना है। अब बहुत सारे लोगों का आता है प्रॉब्लम, जो लास्ट टाइम पे देखा मैं, मेरी सिस्टर जो और एक सिस्टर है उनका भी जो स्कोर हुआ था 88, और एक सिस्टर पास करे, एक सिस्टर का 88 89 पे एलिजिबल दिया, कितने पे एलिजिबल दिया 89 को, उनका स्कोर हुआ है 88। हालांकि लास्ट टाइम वो टीईटी से पहले 88 को ही एलिजिबल दिया, जिसमें मेरे 4 स्टूडेंट क्रैक हुए, 3 स्टूडेंट ने जॉब भी ली, 88 पर लिए। आप बोलेंगे कि आप जो क्या मालूम ये लाना क्या है, तो यहाँ पर जो है क्या मालूम है सिंपल टेक्निक है, आप ये कोशिश कीजिए इसको स्कोर के आने की, तो ये जो है टेक्निक्स फॉलो करके आप जो है स्कोर कर सकते हैं। कोर सब्जेक्ट आपका कभी भी आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए, कोर सब्जेक्ट आपका कभी भी आपके हाथ से छूटे ना, क्योंकि कोर सब्जेक्ट की जितनी अहमियत है इंपॉर्टेंट है वो नहीं है। कोर सब्जेक्ट प्लस लैंग्वेज 1 जो आपका मदर टंग है, इसमें कभी भी आपका स्कोर लूज नहीं है, फेल होने का यही रीज़न है। और लैंग्वेज 2 में भी है, लैंग्वेज 2 अगर इंग्लिश आप रखें तो सिंपल बोल रहा हूँ मैं, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या मालूम है जो ये रहता कंटेंट सिलेबस है उसके क्वेश्चंस फॉलो करो, आप ज़्यादा क्वेश्चन जो आएंगे उसको फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह आप पास होंगे। बस इसी के साथ अगर किसी का कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, किसी का डाउट है कुछ जी पूछिए, कुछ कोई डाउट। सर पेपर 1 में और 2 में सब्जेक्ट्स के रिजल्ट्स हैं। हाँ गुड, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक आपका क्वेश्चन और पेपर 2 में सर पेपर 1 में हमारा फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, हाँ पेपर 2 में भी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू ही है सर, हाँ इंग्लिश चलता वैसे क्या भी नहीं होता। तो बट हम पेपर किसमें अटेम्प्ट करना सर फर्स्ट लैंग्वेज? हाँ देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है आपका, मैं वो भी डाउट क्लियर करता हूँ मैं आपका। देखिए आपका जो है क्या मालूम है यहाँ पर जो है मैं एक बार बता देता हूँ, इसमें भी नज़र आ जाए आपको। यहाँ देखिए मैं अच्छा क्लियर आपको जो है डाउट क्लियर करता हूँ आपका। ये है पेपर 1, ये है पेपर 2, पेपर 2 ये है कॉलम हमारा। यहाँ पे देखिए आपको पेपर 1 में जो है L1 यानी लैंग्वेज 1, उसके बाद L2 यानी लैंग्वेज 2, उसके बाद है साइकोलॉजी, उसके बाद आता है आपका EVS एंड मैथमेटिक्स, EVS एंड मैथ्स, ये
ये 30 मार्क्स, 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 कितने हुए 150, कितना हुआ ये 150, आपको लेना है 90। याद रखें, कुछ लोग बोले 75 हुआ तो होता क्या है कि एक बार आधा करे कहते नहीं अल्लाह अच्छा हुआ ना, मैं बहुत खुश हुई, ऐसा नहीं है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो है टोटली जो है आपको 90 लेना है, इस बार कोई भी रियायत नहीं है। ये यहाँ पर आपने एक पैटर्न देख लो आपको। उसके बाद है L1 लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, उसके बाद है साइकोलॉजी, उसके बाद है आपका कोर सब्जेक्ट, कोर आपका होता है एसएस, जो आर्ट्स है उनका एसएस रहेगा, सोशल साइंस रहेगा, उसके बाद जो साइंस है उनका साइंस एंड मैथमेटिक्स, मिलाकर 60 मार्क्स आए हैं। ये सोशल के अंदर पूरा ज्योग्राफी, सिविक्स, इसी तरह के सो पैटर्न जो क्या होगा ये 60 मार्क्स आएगा, ये 60 मार्क्स आएगा। अब यहाँ पर एक चीज आप देखिए, यहाँ पर एक चीज जो कॉमन चीज है आपको मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप जो है क्या मालूम है बीए बीएड है तो भी आपको दोनों पेपर के, बीए बीएड है तो भी दोनों पेपर के एलिजिबल, बीएससी बीएड है तो भी दोनों पेपर के लिए एलिजिबल। याद हो, क्लियर। अगर आपका जो है क्या मालूम है ओनली बीएड है तो आप पेपर 1 ओनली पेपर 1। आप बीएड प्लस जो है क्या मालूम है फिर कोई ग्रेजुएशन है, क्या है बीएड या बीए है या बीएससी है, तो आप जो है क्या मालूम है दोनों पेपर के लिए एलिजिबल है। सेकंड स्टेज समझ में आए। उसके बाद जो है आपका जो है क्या मालूम है एक चीज आती है कि क्या मैं अब एग्जांपल पूछते हैं, बीए बीएड है कोई मोहतरमा, उन्होंने पूछे कि जो है क्या मालूम है आपने समझे बीए बीएड है, यहाँ पे मैं साइंस मैथ्स ईवीएस और मैथ्स कैसे देना पेपर 1 में क्वेश्चन आता है, कंपलसरी है, तुम कौन सा भी रहो, ये जो है क्या मालूम है आपको पेपर 1 में ईवीएस एंड मैथ्स पढ़ना ही पढ़ना है। क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो है आता है मसला वही जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चूज करने का। क्लियर। अब देखिए पेपर 1 में हो या पेपर 2 में हो, लैंग्वेज 1 आप वो रख सकते हैं जो आप 1st to 10th पढ़े, उर्दू भी रख सकते हैं। आपने उर्दू से ज़रा मसला है तो इंग्लिश भी रखो, क्योंकि आप यूसी में पढ़े हैं। यस सर। यूसी में पढ़े इंग्लिश आप रख सकते हैं, ये आज़ादी है। नहीं आप जो है क्या मालूम ग्रेजुएशन में ऑप्शन आता है इंग्लिश, आप इंग्लिश रख सकते हैं फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड उर्दू भी रखिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको आज़ादी है लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। कन्नड़ा रखना एसएसएलसी मार्क्स कार्ड में है बोलकर वो नहीं है, तब तक ऐसा नहीं है। वो इंटरनेट सेंटर वाले जो हमारे जो भैया होते हैं वो जो क्या मालूम है उनकी भी गलती नहीं है, उन्होंने एमएससी बीएड क्या उन्होंने भी पढ़े होंगे, बड़े बड़े ग्रेजुएशन उनका भी होंगे। कुछ अनपढ़ लोग भी रहते हैं, उन्होंने क्या बोलते हैं नहीं चाहिए मैडम सेकंड लैंग्वेज कन्नड़ा से कन्नड़ा तालो तुम बताओ, तो केपीसी एग्जाम वगैरह के लिए वो अलग है मसला। यहाँ पर जो है क्या मालूम है पीटी के लिए आपके पास आज़ादी है, लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 तो आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर ये साइकोलॉजी तो दोनों पेपर के लिए कंपलसरी है। उसके बाद है ईवीएस, ईवीएस यहाँ पे पेपर 1 के लिए, मैथ्स पेपर 1 के लिए दोनों। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज में लैंग्वेज 2 का मसला जैसा पेपर 1 में था पेपर 2 में भी वैसा है। वो जो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 चूज करें आप वो लैंग्वेज पढ़े सो लेना। फॉर एग्जांपल सर हमारा मीडियम उर्दू है, फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू आती है, उर्दू सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, इंग्लिश रखिए आप, पीयूसी में पढ़े आप इंग्लिश रख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। कन्नड़ा से रखना बोल को डरवा लेगा कौन तो दोस्तों लड़ाई है सिर्फ हमारा उर्दू और इंग्लिश में कंफ्यूजन थोड़ा सा नहीं रख सकते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज आप इंग्लिश भी रखो, फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू भी रखो, नो प्रॉब्लम, डिपेंड अपॉन यू। तो सर अब हमको फर्स्ट लैंग्वेज के लिए उर्दू ही पढ़ना है। हाँ उर्दू ही पढ़ना। उसके बाद लास्ट में आप क्वेश्चन की तरफ आते अगर हैं। सोशल साइंस अगर आया सब्जेक्ट वो कौन से हाँ वही क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ मैं, लास्ट में आ रहा हूँ आपके। अब ये लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 हो गया, ये लैंग्वेज की किरकिरी खत्म है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। अब यहाँ पर अब क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, आप जो क्या क्वेश्चन पेपर मीडियम बोल के एक ऑप्शन है, देखो यस सर। क्वेश्चन पेपर मीडियम है, उसके अंदर जो क्या मालूम है दिया है आपको कन्नड़ा, उर्दू, इंग्लिश, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, ये अलग अलग दिया है, तमिल, इतने ही लैंग्वेज है, इतने हैं। अब इसमें से हमारे जो रुखसाना क्या करे इंग्लिश बुक को चूज करें। यस सर। क्या करे रुखसाना इंग्लिश चूज करे। ये लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 तो कौन से रहते हैं, ये बाकी के पूरे सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश में आते हैं। समझ में यस सर। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 क्या तो रहते हैं, लैंग्वेज 1 इंग्लिश रहा तो जाहिर सी बात है इंग्लिश में चाहेगा, लैंग्वेज 1 उर्दू रहा तो उर्दू में चाहेगा खाली उतार या मीडियम। अभी ना हमारा रुखसाना क्या करे उर्दू चूज करे, समझो ये पूरा क्या आएगा उर्दू में आएगा, ये भी क्या आएगा उर्दू में आएगा। समझ में
क्लियर? एक और एक इंसिडेंट हुआ था लास्ट टाइम पे है, सर अगर उर्दू करते तो पूरा उर्दू में आता पूरा उर्दू में जाना पूरा उर्दू में आता, इंग्लिश एक लैंग्वेज छोड़कर छोड़ इंग्लिश एक छोड़ के बाहर का पूरा उर्दू में आता। क्लियर? किसी को डाउट है? नहीं। और एक मुझे डाउट है, क्या है बोले तो लास्ट टाइम क्या हुआ, ऐसे पहले के एग्जामिनेशन में मेरे क्लासमेट टीचर नाम नहीं बोलता हूँ, फिर मेरे घर को आने के बीच सुन रहे थे रहते सुने थे, तो क्या हुआ उन्होंने टीटी एग्जाम देने गया, बैठे हुआ एग्जाम बैठने के बाद वो लैंग्वेज वन उर्दू करे, उन्होंने क्या करे जी, लैंग्वेज वन उर्दू करे। हालांकि हॉल टिकट में लैंग्वेज तो इंग्लिश बोलकर भी है, तो लैंग्वेज वन उर्दू कर को क्या करे, लैंग्वेज टू भी उर्दू करे उन्होंने, क्या करे लैंग्वेज वन उर्दू, वो सेकंड भी बहुत आसान दिया है, चूज है सब्जेक्ट में, ये हमारी ऊपर ही डिपेंड है समझे गए थे, इसलिए क्या करे उन्होंने, वो भी लैंग्वेज टू भी क्या चूज करे, वो भी उर्दू चूज करे, वो भी वैसे डाले, डालने के बाद आप शॉक होने के वो इवैल्यूएशन इज विथआउट आया रिजल्ट में, ऐसी चीजें हैं, मतलब विथआउट क्या जो गए उनकी नहीं आ डूबी उस टाइम ये चीजें नहीं करने जाना, नहीं हॉल टिकट भी आई थी, वो नहीं एग्जाम में करे उन्होंने, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जब वो उर्दू आसान दिखाए थे, यहाँ भी उर्दू सेकंड दिख रहा, तो मैं वो इंग्लिश टाइप करूँ, मैं इतना आसान उर्दू रहता तो कहीं करूँ तो उर्दू करे, वो उर्दू में पूरा वो सेकंड लैंग्वेज करे, मार्क्स क्या थे 53 मार्क्स क्या थे दिया उनको उस टाइम पे, हालांकि इंग्लिश भी अच्छा था उनका, गड़बड़ रहते हैं आजू बाजू, और एग्जामिनेशन में भी और एक टेक्निक एक सुनो, और एक चीज़ पास होने की सब में अपना काम कितना अपना करना, वो क्लास को कहीं को डिस्टर्ब करने वाले लोग कौन रहते हैं मालूम है, क्या भी नहीं पढ़े सो रहते, उन्होंने पढ़े सो रहे तो भी कब पढ़े सो रहते मालूम है, चांद रात के दिन, सॉरी एग्जाम से एक दिन पहले की जो रात है उसको चांद रात नाम देते हैं, कि चांद रात के दिन पढ़े से चांद रात की खुशी ईद के दिन मनाने वाले रहते हैं, उन्हें पूरा रमजान जो है वैसे लोग रहते हैं जो, तो जो है यहाँ पे जो है पूरा एग्जाम तक क्या भी नहीं पढ़ते हो ना, एग्जाम के 4 दिन पहले बोलते नजमा को फ़ोन लगाना, रुखसाना को फ़ोन लगाना, फातिमा को, अब्दुल को, सबको फ़ोन लगा, कितना मटेरियल उतना पूरा देखना, शौहर देखे तो जो क्या मालूम है उन्हें खुशी फील करना, अम्मा देखे तो जो क्या परेशान होना, बाबा देखे तो सर ऊंचा होना, ऐसा जो है कि हम पढ़ने बैठते हैं पूछो ना कौन, इनका रिजल्ट जो है चांद रात के जैसा चाहता है, तो इसीलिए जो है क्या मालूम है, आप भी क्या करना है, ये पढ़ना है तो कंटिन्यूअस रखना, ओके। किसी एनी डाउट, आपको कुछ डाउट है पूछ सकते हैं आप, बिना इसके डाउट पूछ लेंगे। साइकोलॉजी भी इंग्लिश में आता ना? हाँ साइकोलॉजी में आपका क्वेश्चन पेपर मीडियम में आती बोलती इतना हिस्सा पूरा इंग्लिश में जाता है, ये यहाँ छोड़ा क्या मैं जो पकड़ दूँ बस है, ठीक है, यहाँ से ऐसा। एक उर्दू है तो उर्दू में आता है, और एक आपको क्या है, आपको एक बोले तो वो बुकलेट जो रहती है, देखो बुकलेट के अंदर इंग्लिश वर्जन भी रहता, इंग्लिश वर्जन भी रहता, अगर उर्दू डालें तो इंग्लिश ऐसा रहता, दोनों वर्जन आप वो ये कर सकते हैं, ठीक है। कुछ डाउट है, एनी डाउट रिलेटेड टू दिस, ओके। कोर सब्जेक्ट का जो है क्या मालूम है, जी बोलिए। सर फर्स्ट पेपर पे आपकी जो बता रहे ना साइकोलॉजी, हाँ वो कंपलसरी रहता है, हाँ तो कंपलसरी, मैथमेटिक्स तो कंपलसरी, कंपलसरी, वो जो डाले ना साइकोलॉजी वो भी कंपलसरी, ये भी कंपलसरी 30 मार्क्स, ये पूरा मिला के 150 हुआ, सो पेपर आपका, और OMR शीट रहती है, 4 सब्जेक्ट होने हैं, 5 होने हैं, 4 होने हैं। हाँ सर जो कहाँ पे, हाँ वो से कार्बन पेपर कमाल 1 होता में है, 5 हो रहे हैं, पेपर 2 में 4 हो रहे हैं, ऐसा चलता हो, यहाँ पे 5 रहता तो है ये 4 रहता चला। है, समझ में नहीं, और ये मैथ्स और साइंस दोनों मिला के देना से इधर ईवीएस और मैथ्स अलग-अलग होता है। हाँ ऐसा अलग अलग दिखता है। और एक चीज़ है ना, आपको देखो OMR चीज़ है, और एक OMR बताता हूँ आपको, OMR में जो है क्या मालूम है, अब तो रेडीमेड पूरा ऑप्टेड आ रहा है, यहाँ पे जो है क्या मालूम है 1 आया समझो, इसके बाद A B C D इस तरह आया, तो इसको वो अच्छा राउंड करना, इसको यहाँ पे ऐसा टॉप से पकड़े, ऐसा करना। हमारे पास कैसा करते हैं, मेरे बाजू चीज में जब एग्जाम लिखा था एक मोहतरमा थे, ऐसा था नहीं पूरे ऐसा ए रहा नहीं पूरा, मैं बोले यार बातचीत बात तो बुरा ना तो मानो, हालांकि मेरे बहुत साल छोटे थे, बाजिश बोलना पड़ता, नहीं तो हमारी भाजी करते हैं
बाकी भाग बोलते देखो आपको बुरा मत मानो, क्या बोले तो ऐसा नहीं डालना जी, बोले बैठो सर मैं हमारे भैया पूछ के सुबह बोले। मैं बोला ठीक है मैं सॉरी आपको डिस्टर्ब करा क्या रही हो। तो एग्जामिनर आकर जो गालियाँ दिया, जो गुस्सा करा उनको बाद में, तो बाहर नीचे जाते थे बोला मैं सलाम वालेकुम बाजी। सर ये टीटी का एग्जाम कभी भी अटेंड कर सकते हैं ना क्या? 3 टाइम्स? हाँ, और एक क्वेश्चन आपका है कितने बार भी करो कितने बार भी, वैसा 3 टाइम वो नहीं है। और एक सर्टिफिकेट एक बार पास करे तो लाइफ टाइम वैलिडिटी। सर टीटी के बाद भी सीईटी कंपलसरी होगा? सीईटी देने के बाद से तो टीटी पास होनी। Yes, only 1 to 8 टीचर, 1 to 8 क्लास के लिए टीचर के लिए ये जो है टीटी कंपलसरी है। ये छोड़ो ना, मेरी इतने अब छोटे टीटी में पास हो गए, एलिजिबल हो गए हम लोग, फिर नेक्स्ट सीईटी भी कंपलसरी सीईटी देना। सीईटी टीटी में दो पेपर क्लियर है ना सर? पेपर एक नहीं, देखो आप 1 to 5 के टीचर होना चाह रहे हैं तो पेपर 1 क्लियर देना, 6 to 8 के टीचर होना चाह रहे हैं तो पेपर 2 क्लियर देना, ठीक है। नहीं मेरे को और ही ऊपर लेवल अपग्रेड करने का है तो आपकी जो है आने वाले एनईटी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके अंदर जो है हो सकता है कि जो 9-10 क्या करेंगे, 9 to 12 करें। आप क्या करें एनईपी में 9 to 12 हाई स्कूल एजुकेशन करें। तो यहाँ पर अगर आपको टीचर होना है तो एमएससी या ये मास्टर डिग्री एमएससी प्लस बीएड हो सकता है। अभी नोटिफिकेशन अक्टूबर में वो भी आएगा। मेरे को टीटी बहुत ही स्टेट ना आर्ट दिख रहा, बहुत ही जो है डिफिकल्टीज फील हो रहे हैं मेरे को। आपको छोड़कर जो है क्या मालूम है क्या करना है आपको, आप उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है टीटी में बहुत कुछ मज़ा है, पास कर सकते हैं, बहुत आसान है, आप दिमाग में मत रखो, ठीक है। वो भी आने वाले हैं और पीयू लेक्चरर पोस्ट भी आने वाला है, पीयू लेक्चर नोटिफिकेशन भी आने वाला है। तो उसके बाद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के भी कुछ पोस्ट आने वाले हैं, क्राइस्ट डिपार्टमेंट में भी पोस्ट आने वाले हैं। इसीलिए आप लोगों से खास कर ये दरख्वास्त है कि जो है पढ़ने का दामन मत छोड़ो। ये फेसबुक इंस्टाग्राम और जो है क्या मालूम है क्या क्या है जो कौन सा चार्ट है, चाट खाने का रखो, खाली चाट करने का मत रखो। खाना भी ऐतिहासिक हेल्थ केयर भी आपका रहना। पढ़ो बोले आज जाकर जोश में आप पूरा दिन पढ़ को जो है ऐसा बिस्तर में नहीं पढ़ना, दूसरे दिन घर से फोन। एक बार ऐसे छुआ एक मोहतरमा पढ़ो बोले तो ऐसा पढ़ेगी तो रात दिन पढ़ रहे हैं। उनके हस्बैंड में बोला है सर आपके पास पढ़ने की ट्रेनिंग देते हैं क्या बोलते तो ऐसा नहीं है। तो आप ये पढ़ने का मतलब है आप एक लेवल में पढ़ना हो, 4 घंटे पढ़ो और टेक्निक्स जो है फॉलो करो, जितनी भी टेक्निक्स हैं। आप कोई भी एग्जाम क्रैक करो टेक्निक यूटिलाइज कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ के लाइक लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में पार्ट लैंग्वेज 1 में भी उर्दू रहता है, लैंग्वेज 2 में भी उर्दू रहता। तो अगर हम मीडियम ऑफ लैंग्वेज उर्दू चूज करें, लैंग्वेज 2 में उर्दू रहता नहीं रहता उर्दू उर्दू रखे तो लैंग्वेज 1 उर्दू रखना, नहीं तो उर्दू लैंग्वेज 2 रखे तो 2 रखना, दोनों एक ही जैसे नहीं रख सकते। नहीं तो वो अगर हमको फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश चूज करना है तो इसमें लेवल ऑफ द क्वेश्चन कुछ चेंजेस नहीं होते। हाँ चेंजेस रहते हैं, वो एक क्वेश्चन है, लेवल ऑफ क्वेश्चन चेंजेस रहते हैं। मिसाल के तौर पर जो है क्या मालूम है कोई जो है स्किल्स हैं, स्किल ऑफ जो है लैंग्वेज है, जैसे 2 टाइप्स ऑफ स्किल है, प्रोडक्टिव स्किल है, रिसेप्टिव स्किल जैसे बोलते हैं। रिसेप्टिव स्किल है हमारे वो क्या है, वो रिसेप्टिव स्किल खाली हम रिसीव करते रहते हैं, सुनना है, जैसे एग्जाम्पल समाज जिसको बोलते हैं। ये स्किल लेवल के क्वेश्चन ज़रा अलग अलग क्वेश्चन समझ में। छोटे लेवल से छोटे बच्चों के साथ जो है क्लास में जो छोटे प्राइमरी स्कूल के बुक रहते हैं उसके अंदर खाली पिक्चर्स वो ये रहते हैं। जैसे बड़े क्लास में कॉन्सेप्ट बड़े बड़े प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट रहते हैं, उसी तरह के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी अलग अलग होता है। समझ में आया? कुछ और डाउट? सर आपका टाइमिंग मतलब क्लासेस वो वहाँ पे डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे। ये तो तमाम चीज़ें के ओरिएंटेशन के तौर पे इंशाल्लाह से आने वाले दौर में बहुत सारी चीज़ें अभी भी ये करेंगे। आपको और एक चीज़ पढ़ने का आप शुरू कीजिए, आज से अब तक नहीं करें तो भी नो प्रॉब्लम, टच में रहिए, अपने ग्रुप्स बनाइए, पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर हम सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश रखें ना तो इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज पढ़ना या फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ना सब? इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज का तो पढ़ना। उर्दू मीडियम की टेक्स्ट हाँ उर्दू मीडियम स्कूल की नहीं, वैसा नहीं, पूरे टेक्स्ट फॉलो करना। आप कोई भी लैंग्वेज रखो, आप एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप अब जो लैंग्वेज रख रहे हैं वो कर्नाटक के टेक्स्ट बुक पूरे लैंग्वेज के पढ़ना। अब उर्दू रखे तो भी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू के बुक्स भी पढ़ो, आप ग्रामर जो है वो पढ़ो, थर्ड के भी पढ़ो,
पूरा ग्रामर 6 to 10 तक ग्रामर खाली पार्ट पढ़ो, असबाब के नाम पढ़ो, याद रखना है आपको, ठीक है। और किसी का डाउट? ठीक है। सोशल इंग्लिश में आता ना तो हम उर्दू में मीडियम में ना तो सोशल के इंग्लिश मीडियम के पढ़ना टेक्स्ट बुक। कौन से भी पढ़ो, आप जो मीडियम चूज करें वो मीडियम के पढ़ो, आसानी सोशल में। इंग्लिश में आता ना तो आप इंग्लिश नहीं, सोशल क्यों, उर्दू मीडियम के नहीं है। नहीं उर्दू मीडियम के है वो सोशल इंग्लिश में जाता है। नहीं, अगर आप क्वेश्चन पेपर जो मीडियम रखते हैं वो मीडियम की बुक पढ़ो। आप फॉर एग्जांपल इंग्लिश मीडियम रखते हैं तो इंग्लिश मीडियम की बुक अब पढ़ो। उर्दू रखने से तो उर्दू मीडियम के 6 to 10 के बुक सोशल पढ़ो, का जो 6 to 10 पढ़ो उर्दू में। आप उर्दू में ज़्यादा सोशल आपको होना रहा तो जैसे मालूम है, वो एक ग्रुप है हमारा, और एक में सीटेड ग्रुप है, उसके अंदर आपको ऐड करने लगा तो मैं इंशाल्लाह जो लोग हैं मुझे पर्सनली उनके नेम अपना SMS कर सकते हैं 7848 पर 489294 पर जो क्या मालूम है SMS कर सकते हैं। और आने वाली हर जो छोटी बड़ी अपडेट के लिए जो है मेरा चैनल है गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी, गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी। कितने लोगों को मालूम है मेरा चैनल? कितने लोगों को मालूम है? नहीं मालूम है तो आप सब्सक्राइब कीजिए गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी जी। कौन से? 7848929469 लास्ट भूल गया हूँ, तो 69 है। तो इस पर आप जो है SMS कीजिए, मैं आपको डिफरेंट ग्रुप्स में ऐड करूँगा जहाँ पर जो है इस तरह के ट्रेनिंग होते हैं। और मेरे पास TET जो भी मटेरियल है वो भी आपको गूगल ड्राइव के थ्रू डालूंगा, आप लीजिए जो नवीन जुबैर सर ने तैयार किया था, मतलब कि वो गूगल ड्राइव उन्होंने तैयार किया है, वो मटेरियल भी है। मेरे पास भी बहुत सारा मटेरियल है, मैं डालूंगा, प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है। और मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करने का मत भूलिए। चैनल का नाम क्या है? गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी। तो जज़ाकल्लाह आपका नाम कीजिए। सुल्तान पटल। तो ये तमाम चीज़ें आपकी जो है आ जाएंगी। मैं समझता हूँ वीडियो भी ख़त्म हुआ।